सालों खबरदार, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे गेस्ट जिनको मैं पिछले 1 साल से पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनको पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन साबित हो रहा था। फाइनली वी हैव हिम विद अस टुडे। वी हैव विद अस नोमान अजहर, हु इज the LinkedIn profile said Chief Officer. Yeah. If I remember the last time the title was Chief Digital Officer. What's the real title here? So Assalamu alaikum. Pehle to thank you very much. My apologies for not making it up for last 1 year, though it was my intention to be here, personally meet you. I have been personally impressed with the way you have been working. Thank you, sir. The way you have been contributing. My apologies again. It is a no, I know there's a lot happening with you guys as well. Zindagi ka launch ho raha tha aur bahut sara kuch tha. Exactly. So obviously we have been trying, but kuch mil nahi sake. So my apologies for that. Yeah. It has been a good year for us, fortunately for us, yes. Right. And what's the title there? So the title previously was Chief Digital Officer. While I was working as where my core KPI was to digitize banking operations and processes. Right. Now the title says Chief Officer Zindagi. So technically Zindagi was kind of created as a separate vertical under the bank. So uske liye zaruri ye tha कि we make a title, we make a structure which is independent of the organization. So it is not only a brand. So technically Chief Officer Zindagi, but while saying Chief Officer Zindagi, that means all the verticals which we have in the bank, for example, regulatory, compliance, marketing, tech, you name it, right? Product, customer experience. All those verticals report under me as well. So they are replicated under me, but they are focused towards Zindagi. So that's why this title is a bit, but it's a bit tricky. It's Chief Officer Zindagi. Makes sense. Noman, I'm going to start the conversation just trying to understand a little bit about where were you born and early life. I'm a Pindi boy. So I was born in Pindi and primarily in the area जो कि actually city का area कहलाता है, बनी के इलाके में. That's where my ancestors' home is. वहीं पे मेरी स्कूलिंग भी हुई, वहीं पे स्कूलिंग कहाँ पे किया? स्कूलिंग मैंने ग्राउंड पब्लिक स्कूल से की हुई है मोस्टली. पहले 4 साल अम्मा अब्बा ट्राई करते रहे हर डिफरेंट स्कूल में. कहीं मैं तंग कर देता था, कहीं टीचर तंग आ जाते थे. लेकिन उसके बाद आई थिंक सिंस 4th मैट्रिक मैंने उधर से किया, ग्राउंड पब्लिक स्कूल से. Were you a good student? Good question. I was smart. But I was never so 2 किस्म के होते हैं ना. एक होता है street smart. So I am really poor with organized learning. मैं tests में अच्छा perform नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, but I would consider myself fairly smart. I was always good at problem solving. So you're right. I am kind of what you are explaining. I love problem solving. I'm someone who always feels happier solving a problem, be it my professional life, my personal life. Problem solving is what I look forward to. दूसरा, I would call I am smart and I know it, but मैं एनर्जी उतनी लगाता हूँ जितने में मुझे पता हो मैं पास हो जाऊंगा स्टूडेंट्स में. ठीक है, मैं उससे ज़्यादा, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 4 प्रायोरिटीज है, मैंने पतंगबाजी करनी है, काइट फ्लाइंग करनी है, क्रिकेट खेलना है, एनक वाला जिन देखना है, तो आई विल फाइंड टाइम फॉर दैट. अगर मुझे पता है कि मुझे पोजीशन लेने का शौक नहीं होता था, जिंदगी पोजीशन में नहीं वक्त एग्जैक्टली मैंने लेनी भी नहीं होती थी, तो उसी के मुताबिक मैं टाइम एलोकेट करता था. बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ब्लेस्ड मी विद अ माइंड जिसमें मैं थोड़ा सा टाइम लगा के निकल जाता था, और मेरे लिए इतना ही होता था, बस निकलना है. जबरदस्त. एंड मैट्रिक के बाद कॉलेज मैंने OPF H84 से FSC किया. इट्स अ जर्नी विच इज़ अनप्लैंड. मतलब आपको पता है हमारी एज में जो ज़्यादातर ये होता था कि हम लोगों को गाइड करने के लिए तो इतने ज़्यादा बड़ों को पता भी नहीं होता था कि ये स्कूलिंग सिस्टम है क्या. मैट्रिक तक तो उनको फिर समझ आती थी, उसके बाद FA BA उनके ज़माने में होता था, उन्हें हमारी FSC प्री इंजीनियरिंग फिर बैचलर्स, ये चीज़ें उन्हें समझ नहीं आती होती थी. तो हमारे केस में जो डिसीजन मेकिंग होती थी ना, वो एक्चुअली बड़ी स्टूपिडली वियर्ड होती थी. वो इस तरह होती थी कि दोस्त कहाँ जा रहा है, या तो हमें एडमिशन मिल जाए सारों को इकट्ठे, ठीक है, या कहीं अगर हम चाह रहे हैं तो दोस्त की तरह वो देखते होते थे. तो मैंने मैट्रिक किया. मैट्रिक में सबने कहा कंप्यूटर वो लोग रखते हैं जो नालायक होते हैं. मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ. जी, उसका स्टार्ट था, कंप्यूटर आया था. तो मैट्रिक में जो है ना, वो हमने डिस्कस ये किया फॉर द फर्स्ट टाइम. मुझे ये पता लगा कि एक सब्जेक्ट है जिसका नाम कंप्यूटर है, ठीक है. तो अब आप सेलेक्ट कर सकते हैं बायो या कंप्यूटर में. और अब यकीन करें सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा था कि कंप्यूटर वो उन लड़कों ने लिया जो फेल होते थे या स्टैंड-अप्स भी क्लियर नहीं करते. नहीं यार, हमने कंप्यूटर आसान है, ठीक है, तो ये बायो मुश्किल है. तो हमने इसलिए बायो रख लिया कि यार मुश्किल है, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी. कंप्यूटर ले लिया तो लोग तो ताने मारेंगे, तो नहीं रखा. और मैट्रिक में कंप्यूटर नहीं पढ़ा, बायो रख लिया. बायो के बाद आइडियली ऑब्वियसली, एंड क्योंकि स्मार्ट था तो मैट्रिक में मार्क्स भी अच्छे ले लिए, ग्रेडिंग शेडिंग भी आ गई. तो आइडियली तो ये होना चाहिए था फिर प्री मेडिकल में जाता, क्योंकि बायो रखा था. बट क्योंकि दोस्त ने कहा मैंने प्री इंजीनियरिंग करनी है, तो मैंने कहा मैं भी प्री इंजीनियरिंग करूँगा. तो वी वेंट इनटू प्री इंजीनियरिंग. इफ आई रिकॉल नाउ दैट टाइम प्रोबेबली. एंड देन उसके बाद आप जैसे मैं बताता हूँ, उसके बाद मैंने MBA किया. सो BBA किया और MBA
किया. So दोनों सेम यूनिवर्सिटी दोनों सेम यूनिवर्सिटी से. तो वे एक्सीडेंटली फॉलन इनटू एरिड यूनिवर्सिटी फॉर्चुनेटली एज वेल. अल्लाह का शुक्र आई वेंट देयर. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? So it was so on the university bit I always say, या इवन माय एंटायर एजुकेशन करियर में हमेशा कहता हूँ कि स्टूडेंट की अपनी विलिंगनेस बड़ी मैटर करती है. यूनिवर्सिटीज ऑब्वियसली एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट सिखा सकती हैं, एक प्रैक्टिस में आपको डाल सकती हैं, कहीं पे एजुकेशन क्वालिटी अच्छी होगी, कहीं पे बुरी होगी. अदर देन आई डोंट नो 0.5% ऑफ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ जनरली सिर्फ कोर्स पढ़ाया जाता है. ग्रूमिंग जो है वो कोई आपको पता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की जो पर्सनली आपको ग्रूम करती होती हैं. तो जो ग्रूम नहीं कर रही ना उन यूनिवर्सिटीज़ में फिर आपकी पर्सनल विलिंगनेस होती है. नॉर्मली ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में दो किस्म के बड़े सीरियस प्रॉब्लम है. एक जो टीचर्स हैं वो टीचर वहीं के पढ़े हुए हैं और आपको पढ़ा रहे हैं. सो दैट्स वन प्रॉब्लम, राइट. सेकेंड प्रॉब्लम है क्योंकि उन्होंने सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि उनका इंडस्ट्री एक्सपोजर को बहुत ज़्यादा नहीं होता, ना वो उसको अरेंज करते हैं ना वो उसको मैनेज करते हैं. वो एक अलग इशू होता है जिसके से आपको एक्सपोजर ही नहीं मिलता है स्टूडेंट. तो एक्सपोजर लेना फिर आपके अपने ऊपर है. फॉर एग्जांपल आपने इंटर्नशिप सीरियसली की या नहीं की. फॉर एग्जांपल जब प्रेजेंटेशंस हैं उनको आप कैजुअली ले रहे हैं या आप सीरियसली ले रहे हैं. आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर यूनिवर्सिटी बिल्ड नहीं भी कर रही तो क्या आप इतने पंगे ले रहे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाए. तो आई थिंक आई वॉज लकी. मैंने जिस वक्त 4 साल, और मैं इस बार में भी लकी था कि जब मैं बैचलर्स कर रहा था तो एरिड का लास्ट सेशन चल रहा था बैचलर्स 3 सालों वाला. अच्छा. और MBA 1 साल वाला. सो मैं उन दोनों में निकल गया. 4 साल के अंदर आप यू वर डन विद द एंटायर थिंग instead of 6 years and that was the last year. उसके बाद जो आया MBA में वो भी 2 साल पे आया और भी तो अल्लाह ताला करता है. लेकिन जब मैं उसको पूरी को समराइज करता हूँ ना अपने माइंड में, तो एक फॉर एग्जांपल आज के दौर में इज इट मोर यूजफुल के कंप्यूटर पढ़ाओ या बायो. एंड विद माई काइंड ऑफ फाइनल वट एवर आई डिड तो कंप्यूटर था. लेकिन मैंने कंप्यूटर इसलिए नहीं लिया कि लोग बातें करेंगे तो मैं बायो पढ़ लिया. अच्छा, उसके बाद जब मैंने करना ही BBA था तो प्री इंजीनियरिंग करने की तुक नहीं बनती थी, लेकिन क्योंकि दोस्त का रहा था तो मैंने कहा नहीं प्री इंजीनियरिंग करनी. बट देन अगेन मैंने मैट्रिक में मार्क्स अच्छे लिए और प्री इंजीनियरिंग क्योंकि एक तो कॉलेज लाइफ में वैसे भी आप ज़रा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एंगेज हो जाते हैं तो वैसे ही टफ होता है. उसका प्री इंजीनियरिंग वॉज इवन टफर, राइट. तो आई वॉज नेवर मेड फॉर केमिस्ट्री एंड बायो एंड स्टफ लाइक दैट, राइट. फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे हाँ मैथ्स मेरा सब्जेक्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आई लाइक इट, प्रैक्टिकल्स मेरे सब्जेक्ट है मैं कर लूंगा. लेकिन जो ये रटराइज वाला था ना ये मेरे से नहीं होता था. और केमिस्ट्री में तो फिजिक्स में बिल्कुल भी नहीं होता था. ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होता. तो आई थिंक if someone would have been there who would have analyzed my strengths and told me तो मैं कभी प्री इंजीनियरिंग ना करता. तो मैंने मैट्रिक में परसेंटेज में जितने मार्क्स लिए थे उससे बहुत बुरे मार्क्स मैंने परसेंटेज में आके इसमें लिए FSC में. लेकिन फिर फॉर्चुनेटली अल्लाह ताला एक बेहतर रास्ता चाहता था. अगेन यूनिवर्सिटी में आई जस्ट जम्प्ड इनटू दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज जहाँ मैंने अप्लाई किया वहाँ हुआ नहीं तो वो अगले सेमेस्टर में होना था. मेरी ज़िंदगी में हमेशा ना मैं क्रेजी रहा हूँ इस बात के पीछे कि मेरा कोई एक दिन भी ज़ाया ना हो जाए. सो मुझे ये डर होता था. मतलब जब मेरे पेपर होते थे ना तो मुझे सबसे बड़ा डर ये होता था मैं बीमार ना हो जाऊँ, मेरा पेपर मिस हो गया तो मेरा साल मिस हो जाएगा. सो आई वॉज सो क्यूरियस अबाउट इट कि आई फाउंड आउट कि अच्छा इस वक्त और किसके एडमिशन खुले हुए हैं. तो वाहिद यूनिवर्सिटी जो 2 महीने लेट एडमिशन खुलती थी अदर देन साइकिल चल रही होती थी वो बैरियर ये अपना एरिड थी. मैंने अप्लाई किया, मेरा एडमिशन हो गया, वेंट इनटू इट, राइट. तो इस तरह एक्सीडेंटली लैंडेड देयर. लेकिन 4 साल वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस जहाँ मेरी फिर जो बाकी दोस्त थे उनको 6 साल लगे क्लियर करते हुए, मैं 4 साल में क्लियर कर गया. बट BBA और MBA करके एक डायरेक्शन भी मिल गई मुझे. तो वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है. अल्लाह ताला एंड आई एम जनरली अ पर्सन हु गोज विद द फ्लो. एंड व्हाट ईयर डिड यू ग्रेजुएट इन? सो आई ग्रेजुएटेड इन 2008. 2004 to 7 I did my BBA. 2008 I finished my MBA. I started my career in 2007, mid 2007 while I was doing my BBA. Right. And you were how old at the time? So I think I was 19. Really? Yeah. So you started your BBA at around 17? 17, 18, I think. I think I might be missing a year or two, but 2000. So I was born in 1986 December, which is 87, right? So if I started, it's 20 years. 20 years when I actually started BBA. Interesting. So 23, I was done with everything. Interesting. And career आपने कहाँ पे start किया? So career मैंने start किया एक normally जो उस वक्त बहुत ज़्यादा trend होता था एक international call center में. For me, I think there was a mishap which turned into an opportunity and the best thing that has ever happened to my family or me in particular. I belong to a businessman family. बड़ा ज़िंदगी differently चलती थी. Right in 2007 when I went into the second last semester of the university, we got into serious financial crisis as a family. Serious financial crisis. Our business was almost nowhere. We had a lot of losses, a lot of loans and stuff like that. उस वक्त तक मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था मैंने नौकरी करनी है क्योंकि बिजनेस was established. हमेशा बात यही होती थी कि आप मतलब क्या करेंगे. मतलब माय फादर यूज्ड टू हिज फ्रेंड्स यूज्ड टू टेल हिम कि यार ये सब क्या कर रहे हैं, बच्चे को क्या पढ़ाई जा रहे हैं, छोड़े करो. डैडी भी कहते थे ठीक है बिजनेस ही संभालना है संभाल लेगा.
2007 अर्ली 2007 में ये रियलाइजेशन जब आना शुरू हुई, क्योंकि झटके तो लगना शुरू हो गए थे कि यार ये तो नहीं चल रहा, तो उस पे एंड देन 4-5 महीने लगे एंड वी वर इन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला ने पर्दा कायम रखा, लेकिन वी वर इन सीरियस शिट। सो उसका फायदा ये हुआ कि एक रियलाइजेशन आई कि नहीं कुछ करना पड़ेगा, वरना तो ये गुजारा ही नहीं चलेगा, अपनी फीस भी खुद पे करनी है, राइट? तो ऐसा मौका आ गया कि अपनी फीस भी खुद पे करनी थी। Were you the oldest in the family? I am the eldest male in the family, yeah. So my elder sister is obviously elder than me, 4 years elder than me, but even in my entire grandparents वाले घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। Right. तो वो आपके सर पे एक पड़ गई थी कि पड़ गई, और उस वक्त ये भी पड़ गई थी कि अब लास्ट सेमेस्टर की फीस नहीं पे हो सकती। तो इतने बुरे हालात हो गए थे कि कैसे करना है। तो अल्लाह ताला की तरफ से अच्छा हुआ, लेकिन मेरे एक बॉस मेंटोर हैं तैमूर साहब, उन्होंने ज़िंदगी में मैं आज जो भी उनकी बहुत बड़ी उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है, और वही एक्चुअली उन्होंने मुझे एक बार कहा कि जो ज़िंदगी में किसी को मसला आता है ना, वो 2 तरफ लेके जाता है, या तो उसको बना देता है या बिगाड़ देता है। तो यू शुड बी थैंकफुल। और वो दिन है, उसके बाद मैं इस सारे एपिसोड को कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है ये हमारे साथ हुआ। ही गेव मी हिज एग्जाम्पल एज वेल। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उस प्रॉब्लम में डाला, उस प्रॉब्लम ने मुझे मेहनत करने की आदत डाल दी। मुझे ये नज़र आ गया था कि जो हमने, और जो एक अगर आप मेरे से पूछे ना कि मैंने जॉब क्यों की, तो मुझे कुछ नहीं पता था, मैं तो कभी करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने एक स्टेटस जाते देखा और उसके बाद दुनिया बदलते देखी। तो स्टेटस गया तो मेरी मजबूरी थी, मुझे फीस पे करनी थी, मैंने नौकरी कर ली। लेकिन जब मैंने दुनिया बदलते देखी ना, तो उसने मेरा पैशन बनाया कि मैंने वो स्टेटस वापस लेके आना है, क्योंकि इट्स अनफॉर्चुनेट बट द वर्ल्ड अराउंड यू इज़ नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट यू आर, कि आप पर्सनल लेवल पे क्या हैं, आपका उनके साथ रिश्ता क्या है। वर्ल्ड अराउंड यू मूव्स अराउंड द स्टेटस दैट यू कैरी। क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी वो स्टेटस देखा था, मैं पैदा ही उसी स्टेटस में हुआ था। जब वो स्टेटस गया, मैंने दुनिया को बदलते हुए देखा। तो एक तरफ मैं मेहनत इसलिए कर रहा था, नौकरी में इसलिए कर रहा था कि अब घर के एक्सपेंसेस चलाने, अपनी फीस पे करनी है, बट नौकरी से ज़्यादा जो मुझे किसी जगह पहुंचने का पैशन आया ना, वो इस दुनिया को देख के आया कि कैसे ये दुनिया बदली है। तो इट हैज़ बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस फ्रॉम मी। तो मैंने वो इंटरनेशनल कॉल सेंटर से नौकरी शुरू की। दिन में मैं यूनिवर्सिटी में जाता था, रात में मैं कॉल सेंटर जाता था। नॉर्मली वीकडेज़ पे मुझे हार्डली, और वीकडेज़ का मुराद 6 दिन होते थे, नॉर्मली मुझे 4 घंटे सोने को मिलते थे। मैं सुबह 4 बजे वापस आता था, 8 बजे मैंने वापस उठना होता था। और सबसे अच्छी बात यह है कि और अगेन क्योंकि मैं स्मार्ट, मुझे पता है था, लेकिन मैं सीरियस नहीं लेता था। जिस सेमेस्टर में मैंने 6 महीने ऐसे गुजारे कि मैं रात को नौकरी करता था, जो कि लास्ट सेमेस्टर था, उसमें मैंने मतलब टॉप किया। अच्छा। 3.95 CGPA out of 4. Insane. So it wasn't about you not having the time. जो ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं ना, ओ यूनिवर्सिटी में टाइम ही नहीं होता, ओ यूनिवर्सिटी में तो ये नहीं होता। एंड आई एम जस्ट लाइक, मैंने खुद यूनिवर्सिटी के दौरान जॉब भी की, मैंने अपना ये कंटेंट का काम भी किया, और मैंने यूनिवर्सिटी भी गुजारी। आई वाज जस्ट लाइक यार टाइम होता है, आपकी प्रायोरिटी डिपेंड, आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। और आप देखें ना कि मेरे पास 4 घंटे सोने के लिए होते थे, बट वीकेंड पे मैं पूरा दिन पढ़ता था। 4 घंटे में भी मैं कई बार 1 घंटा उठ के, जब पेपर होते थे तो मैं 1 घंटा पहले उठता था, पढ़ के जाता था। बट आई नो, वो मुझे पता था कि वो जो 1 घंटा मैं फोकस करता था ना, उस फोकस का लेवल ही और था, क्योंकि फिर मेरी पैशन और था ना, फिर मेरे टारगेट और थे। उस वक्त तो ठीक है यार, पढ़ाई करनी है, डिग्री लेनी है, वो डिग्री लेना मकसद नहीं रह गया था मेरे लिए। एंड इट रियली हेल्प, क्योंकि BBA का वो लास्ट सेमेस्टर था, फिर मैंने MBA बड़ा सीरियसली किया, तो इट एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट। Interesting. And a lot of what you were earning obviously was going either in your fees or going back to the house, right? Yeah, I think more than what I was earning was going back. So we were constantly getting into a situation which was, we were taking obviously debt, तो उसके सर्कल में चल रहे थे। And luckily for us again, जहाँ मुझे ये ट्रेनिंग हो रही थी, वहीं पे साथ बिजनेस भी दोबारा खड़ा होना शुरू हो गया। Right. तो अल्लाह ताला ने वो जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शायद मैं अगर आपको एक शॉक दिया ना, वो 3 साल का शायद शॉक था टोटल, ठीक है। Right. उसके बाद भी बैक ऑन ट्रैक फ्रॉम माय फादर साइड एज वेल, फ्रॉम माय साइड। अल्लाह ताला ने मुझे वो 3 साल में ना, मुझे, मेरे छोटे भाई को, मेरी बड़ी बहन को, हम सारों को समझाया कि याशियां कर ली, तुम लोगों ने आगे चलना है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आई एम रियली प्राउड ऑफ इवन माय पेरेंट्स, माय मदर हु स्टूड वेरी स्ट्रांग। अल्लाह ने ये इज्जत रखी, हमें कभी किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को ये पता नहीं लगा, घर का पर्दा कायम रहा। बट वी, मतलब बहुत बुरे हालात। What does your younger brother do? So my younger brother works for another competition of ours, and he is mashallah doing brilliant in his career as well. He's again achieving major milestones in career, and he's again a star. Alhamdulillah. Very cool. So you graduated in 2007. How long did you work for that? 2008. I did my MBA. Right. I worked for that call center for almost 6-7 months. Right. उसके बाद एक insane सी opportunity आई, मेरे टीचर थे MBA में, और ही सॉ समथिंग, मैंने कहा यार तुम यूफुन में आ जाओ, लेकिन यूफुन में ना नौकरी नहीं है, बट आई कैन हेल्प यू विद इज एन इंटर्नशिप पे आ जाओ।
अगर आपने पैसिव इनकम के बारे में परेशान है, खासकर आजकल की इकोनॉमी में जहां पर ऑलरेडी कैश कंटिन्यूअसली बर्न हो रहा है और इन्फ्लेशन हमें मार रही है, तो आई एम प्राउड टू अनाउंस दैट दिस वीडियो इज इन पार्टनरशिप विद सरमाया फाइनेंशियल्स। दे आर ऑफरिंग 2 वेरी कूल ट्रेनिंग्स, कैपिटल मार्केट फंडामेंटल्स, जिसमें आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सीखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर एक कंपनी के अंदर क्या ऐसे फंडामेंटल्स होते हैं जिनको आपने देखना होता है टू फिगर आउट कि वो एक अच्छी कंपनी है टू इन्वेस्ट इन। और दूसरी ट्रेनिंग है टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास, जिसमें आप सीखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट ट्रेडेबल एसेट्स लाइक कमोडिटीज, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो के अंदर थोड़े से पैसे लगाकर बहुत ज्यादा पैसे बना सकते हैं। पर्सनली ये ट्रेनिंग मैंने भी ली है एंड इट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल। द लिंक टू द ट्रेनिंग्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। चेक देम आउट एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। एंड नाउ बैक टू द पॉडकास्ट। और ये बड़ा प्राइम टाइम है, राइट? सो टेल्को इज जस्ट बूमिंग राइट नाउ। टेल्को इज बूमिंग प्लस, लेकिन अब वहां से इतनी अंडरस्टैंडिंग तो ऑनेस्टली आपको तो मुझे भी नहीं थी कि ये टेल्को बूम कर रहा है, ये नहीं कर रहा, मुझे तो पैसों से मैटर करता था। अब मेरे लिए वही सारे पैसे भी थे। सो इट अगेन, जैसे मैंने कहा था कि आई जस्ट गो विद द फ्लो। पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा ठीक है टेल्को में आया। तो अच्छा, एक इशू भी था, बल्कि मुझे याद है अभी याद, MBA मेरा इवनिंग में था, ठीक है, और अब मुझे मॉर्निंग कॉल सेंटर में शिफ्ट होना था। अच्छा, मॉर्निंग कॉल सेंटर में मेरी जगह नहीं बन रही थी, मुझे भी याद है कि वो कुछ इश्यूज चल रहे थे। उन्होंने कहा जी आप 1 महीना करें, तो मुझे लग रहा था मेरा MBA रह जाएगा, राइट। मीनवाइल टीचर ने कहा कि आप इंटर्नशिप पे आ जाएं। अच्छा, मैं क्योंकि जिंदगी में हुई रिस्ट्रिक्ट, तो मैंने सोचा कुछ नहीं, हालांकि वही पैसे मेरा घर चला रहे थे। मैंने कहा ठीक है। हाँ। अच्छा, वो मैं अच्छी खासी 20-22 हज़ार की नौकरी छोड़ के मैं 5,000 रुपये की इंटर्नशिप पे चला गया। अच्छा, ये बड़ा जरूरी है क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल वो जनरली वो कहते हैं जी लोगों की प्रिविलेज होती है कि वो जो है ना इस तरह करते हैं। आपकी वो प्रिविलेज नहीं थी। प्रिविलेज नहीं थी मेरे लिए, तो आपके सब कुछ ब्रेड एंड बटर था। पैसा वो सारा घर चलाने के उस पे था। बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए भी वही पैसा चाहिए था कि मैं यूनिवर्सिटी जा सकूं। मैंने छोड़ दिया। वेंट एड, उन्होंने कहा जी मैं, और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, उन्होंने मुझे कहा, काइंड ऑफ हिम अता साहब थे, उन्होंने कहा जी आई कैन प्रॉमिस यू एन इंटर्नशिप से आगे तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या बनाते क्या करते हो, ठीक है। हाँ। तो 3 महीने मैक्सिमम इंटर्नशिप दे सकते हैं, या इट विल बी कन्वर्टेड इनटू जॉब या नहीं। वो आई वेंट देयर, अल्लाह ने करम किया, 1 महीने के अंदर ही दे हायर्ड मी। अच्छा, आप तो आपको रखना है। हायरिंग हो गई। स्टार्टेड ऑफ माई करियर इन 2007-8 अर्ली 8। एक स्मॉल पॉज, इफ यू हैडंट, सो इफ यूड बीन लाइक कि नहीं यार मैंने तो MBA में करने वाला हूँ, मैंने तो ग्रेजुएट कर लिया हुआ है, मैं इंटर्नशिप क्यों करूँ? यू नो, जो कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यार वो है। डू यू थिंक यू वुड हैव एंडेड अप इन द सेम स्पॉट दैट यू आर इन टुडे? नेवर। और वो सिर्फ इस जगह पे नहीं, मैंने जिंदगी में कभी डिसीजन ऐसे नहीं लिया। अपनी वैल्यू खुद नहीं लगानी होती। अपनी वैल्यू वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अपनी वैल्यू दिखानी होती है काम से। ये जो हम अपनी, और ये आजकल के बच्चों में ज़्यादा है, हमारे दौर में भी होता था, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। बट मैं आपको बताऊँ, मेरी 60 लड़के लड़कियों की क्लास थी यूनिवर्सिटी में। 60 से ज़्यादा थे, 80 थे तकरीबन, दोनों सेक्शंस मिला के। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे मेरे कलीग, सब कुछ। अगर मैं इफ़ आई टर्न बैक ना, तो इन 100 लोगों में से शायद 90 लोगों को मैंने यही करते देखा है कि उन्होंने अपनी वैल्यू खुद लगाई। आप जब तक अपनी वैल्यू खुद लगाते रहेंगे, आप गलत करेंगे। तो मुझे ये पता था कि अल्लाह ने एक रास्ता दिखाया है, आई जस्ट टेक इट एंड आई जस्ट गो विद द फ्लो। मेरा जो आई जस्ट से कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन फैक्टर होगा ना मेरी सक्सेस में, जहाँ मेंटोर्स का होता है, जहाँ दुआओं का होता है, अल्लाह ताला पे जो किसी तरह, और ये भी अल्लाह ही देता है, कामिल एतबार होता है ना, तवक्कल अल्लाह होता है कि यार जो अल्लाह कर रहा है वो ठीक कर रहा है। और ये नहीं कि मैंने उस वक्त कोई सोच के किया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसे नहीं कि मैं बहुत बड़ा मुसलमान था तो मैंने कहा मैं तवक्कल अल्लाह कर रहा हूँ। आज अगर मैं देखता हूँ ना, तो मेरे से अल्लाह ने कराया ये कि जो अल्लाह करता था मैं चल पड़ता था। और अल्लाह ने हमेशा वो बड़ी सबकॉन्शियस सी चीज है, सबकॉन्शियस में था मेरे कि अल्लाह करा रहा है। वो ये नहीं हो सकता कि आप जो है जी बड़े, अगेन आप बड़े रिलीजियस तो हैं, आपने बात मान ली, लेकिन अंदर से आप डरे हुए हैं। एग्जैक्टली, जो द लैक ऑफ डर है ना, वो फेथ है अल्लाह ताला के ऊपर इफेक्टिवली मेरे लिए। और वो अल्लाह ने बड़ा जबरदस्त डाला मेरे में। हमेशा रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, मैंने लिया। Within 2 months of time, I was taking double of the salary, and I was in a better organization, which later I realized लोग नॉर्मली कहते हैं, लोग नॉर्मली कहते हैं जब कामयाब हो जाते हैं। मैंने बड़ा सेलेक्ट किया, मैं टेल्को में गया क्योंकि बूमिंग कुछ नहीं किया, अल्लाह ने कहा मैं घुस गया। जंप लग गई। मैं वेंट इनटू ऑपरेशन साइट्स, कॉल सेंटर ऑपरेशन होता था, बैक साइड पे सपोर्ट सेंटर कहते थे उसे, जो कंप्लेंट्स हैंडल करता है। 1.5-2 साल लगाया। आई वॉज काइंड ऑफ विजिबल मोर देन नॉर्मल पीपल बिकॉज आई वॉज स्मार्ट। एंड देन मुझे पता था मैंने क्या करना है। मुझे भी याद है, मैं पहले सुबह यूनिवर्सिटी जाता था, शाम को मेरी शिफ्ट होती थी, मैं रात को सुबह तक बैठा रहता था। सुबह फिर किसी दिन अगर छुट्टी होती थी, मैं 2 बार दफ्तर जाता था। बट आई मेड श्योर कि मैंने एक मिनट काम किया और काम सीखा है। एंड इवेंचुअली इट्स नॉट अ नॉर्मल ट्रेडिशन इन टेलीकॉम, बट मैं CS से उठा और मैं बिजनेस साइड पर चला गया। सो 2-2.5 साल के अंदर मैं प्रोडक्ट का पार्ट था। एंड देन आगे 10 साल मैंने, ऑलमोस्ट 9 साल में मार्केटिंग साइड पे रहा।
Within 11 years, when I was leaving Ufone after 11 year of my career, so I was heading digital financial services and digital governance, which from the business side, I was the youngest business head ever in the telecom industry. So अल्लाह ताला का बड़ा करम है. And this is very important. मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा जो आपने 2 years customer service से business की तरफ किया. For a lot of people, again, like you mentioned ना कि वो तो जो आपने पहले शायद मिस्टेक कर ली थी मैट्रिक में कि यार फेलियर्स जाते हैं कंप्यूटर के अंदर. तो इसी तरीके से कस्टमर सर्विस का भी यही होता है कि यार वो तो कोई काम थोड़ी है, वो तो एनी टाइम्स आया है. हाउ फर्स्ट पहले मुझे ये बताइएगा, हाउ वर यू एबल टू मेक दैट स्विच? एंड अगेन डू यू थिंक कि क्योंकि बहुत सारे लोग अपने डिसीजंस ये ले रहे होंगे कि यार नहीं मुझे ना सही वर्टिकल में घुसना है ताकि मैं उससे आगे वो अपना पैसे बना सकूँ. So how important was that customer service वाला जो एक्सपीरियंस था in your journey? So अगर आप टेक्निकली देखें, जैसे आप बिल्कुल सही एनालाइज कर रहे हैं, तो कोई कहेगा यार ये क्या कस्टमर सर्विसेज, राइट? हाँ. मैं आपको बताऊँ मेरी करियर में आज तक सबसे ज़्यादा हेल्प अगर कोई मुझे करता है ना तो वो 2 साल का एक्सपीरियंस करता है. मेरी 5 साल की पढ़ाई नहीं करती, मेरी 15 साल की बाकी एजुकेशन नहीं करती. ठीक है, अपने अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करते हैं, बट वो 2 साल का एक्सपीरियंस, क्योंकि उस वक्त मैं अब जो मैं जिसको मेंटोर करता हूँ ना, मैं हमेशा उसको उसी साइकिल से गुजारता हूँ. उसकी वजह जब मैं हाँ डिपेंड ये करता है कि आपकी अपनी नेचर क्या, आप कितना लर्न करना चाहते हैं. जब मैं कस्टमर सर्विसेज में था तो मेरे पास 360 डिग्री व्यू था, क्योंकि कंप्लेंट आती थी दिन की 10,000. ठीक है, और वो हर चीज के बारे में होती थी. अब आप प्रोडक्ट में जाते हैं, आप जाके एक प्रोडक्ट देखते हैं तो आपको 10 साल लगते हैं सारे प्रोडक्ट्स को समझने में. और ऊपर से क्योंकि मेरी ईगरनेस इतनी थी लर्न करने की कि मैं आपको मजे तो मैं चला गया कस्टमर केयर में. मुझे नहीं पता था. मुझे जब प्रोडक्ट से ऑफर आई ना तो मैं अपने बॉस के पास रोता हुआ चला गया, अपने कस्टमर केयर वाले बॉस के पास. मैंने कहा मैंने नहीं जाना आपको छोड़ के. उसने बिठाया मुझे, मेरे साथ बड़ा प्यार करते थे, बड़ा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया. उसने कहा मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी वहाँ नहीं पहुँचा सकूंगा जो तुम प्रोडक्ट में जाके पहुँच सकते हो. अब मैं आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे अंदाजा नहीं था. वो भी आपने खुद नहीं किया. एग्जैक्टली, मुझे अंदाजा भी नहीं था प्रोडक्ट बेहतर है. मुझे मार्केटिंग से ऑफर आई, मैंने कहा यार मार्केटिंग में ठीक है, मुझे ये पता था मेरे पैसे बढ़ जाएंगे. मेरी ज़िंदगी में कभी पैसे ने वैल्यू नहीं रखी, कभी. जब मेरी बेसिक नीड थी तब भी मैं छोड़ के चला गया था. मैंने ज़िंदगी में बहुत बार बहुत कुछ ज़ाया किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पैसा मैटर ही नहीं करता. मैंने आज तक मुझे 16 इंक्रीमेंट्स अप्रेजल साइकिल मैंने गुजारे अपनी ज़िंदगी में. मैंने अपने बॉस से कभी नहीं कहा कि मुझे ये पैसे चाहिए. मैंने अपने बॉस से कभी नहीं कहा मुझे ये चाहिए. जो मिल गया. और अल्लाह ताला ने मेरी औकात से बहुत बढ़ के हमेशा मुझे दिया. आज भी मेरी औकात से ज़्यादा है. मुझे मार्केटिंग से ऑफर आई और वो इसलिए आई क्योंकि मैं एक्स्ट्रा काम करता था. और मैं लोगों को समझाता हूँ कि जब आप हार्डवर्क करते हैं ना कहीं वो नोटिफाई हो जाती है. मुझे याद है 7, 8, 9 इम्प्लीमेंट हुआ पूरे टेलकोज में कि कॉल करके आपने एक्टिवेट कराना से. वो एक दिन इमीडिएटली इंप्लीमेंट हुआ तो मैस हो गया पूरी टेलीकॉम में. अच्छा, अब हुआ क्या, लोगों के हमारी दिन की सेल होती थी 20-20 हज़ार. लोगों के नंबर एक्टिवेट होना बंद हो गए. जब नंबर क्योंकि कोई सिस्टम इशूज़ चल रहा था, नंबर एक्टिवेट होना बंद हुए. मैं 72 घंटे, मेरा कोई ताल्लुक नहीं था. मैं अदना सा एग्जेक्टिव फर्स्ट MG1 ग्रेड 1 पे जो आप अफसर हायर होते हैं वो था. ठीक है, बट मैं बैठा हुआ था, मुझे नजर आई कंप्लेंट्स बढ़ी हैं. मैंने इनिशिएटिव लिया, मैंने उसको पे काम करना शुरू कर दिया. मैंने मसला पकड़ लिया, मैंने रिस्क लिए, घुस गया चीज़ों के अंदर. करते करते मैंने जब एक नंबर ठीक किया तो बॉस की मुझे कॉल आ गई. कहते हैं तुमने कैसे एक्टिवेट किया? मैंने कहा सर मैंने ये 4 चीज़ें ट्राई की, ये वर्क कर गया. कहते हैं गुड, टेक इट, कैन यू टेक इट अप. आज हमारे पास 40,000 पेंडिंग चल रहे हैं. मैंने कहा सर मैं आपको शाम तक सारे क्लियर कर दूंगा. जब मैं बैठा ऑब्वियसली उस पर टाइम लगा. मैं 72 घंटे 72 आवर्स स्ट्रेट ऑफिस में रहा. मैं 4 घंटे सोया, 2-2 घंटे करके 2 दिन. ठीक है, 72 आवर्स में माई CEO वॉज देयर इन दैट ऑफिस टू आस्क के ये. और मतलब CS में किसको पता होता है कौन बच्चा है. ठीक है, क्योंकि मेरी ईमेल्स चल रही थी, क्योंकि पूरी, और उसके बाद पूरी सेल्स फोर्स, मुझे आज भी याद है हमारे हेड ऑफ रिटेल वो भी दफ्तर में, मेरे जो VP थे उस वक्त वो भी दफ्तर में, सारे दफ्तर में आ गए. और आके सिर्फ ये नहीं देखने आए कि काम क्या हुआ है, वो ये देखने आए कि नुमान नज़र कौन है, ये कौन बच्चा है जिसे 72 घंटे से काम कर रहा है, लगा हुआ है, और उसने हमारा इतना बड़ा मसला हल कर दिया. आई कुड हैव सिंपली केम, वेंट बैक, जो मेरी ड्यूटी थी मैं और एक ईमेल कर देते कि सर ये आपने गलत किया है, अब इसको यूं करें प्लीज टेल मी व्हाट टू डू. मतलब वो तो मैनेजर बड़े सीनियर लोग करते ना. मैं तो देखता कंप्लेंट ज्यादा है, हल हो नहीं रही, छोड़ दो. रिस्क लिया, और उसमें रिस्क भी था क्योंकि मैं जो पंगे ले रहा था कुड हैव टर्न्ड बैक बैडली ऑन मी. हो सकता है मैं कुछ गलत कर देता, मुझे भी नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ. लेकिन मैंने हमेशा लीप ऑफ फेथ लिया चीज़ों पे और हमेशा रिस्क लिया. अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरे बॉसेस ने मेरा साथ दिया है. उसके बाद आई वॉज जस्ट मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन. मेरे साथ ये बड़ा अच्छा रहा है कि मैंने जब मेहनत की अल्लाह ने बहुत रिवॉर्ड किया. मैं हमेशा स्टार रहा हूँ, जा भी रहा हूँ. ठीक है, तो यूफोन में भी अगेन बहुत सारे लोग यूफोन में मेरे साथ थे, अभी भी हैं, जानते हैं, बड़ा नाम भी, अल्लाह ने इज़्ज़त भी बड़ी दी. सबको पता है कि मैंने कोई नेक्स्ट लेवल, मैं सुबह सबसे पहले आता था, रात को हमेशा सबसे बाद में जाता था. और मेरा कभी भी रूटीन ये नहीं रही कि मैं लोगों को जी मैं काम दिखाने,
सब मैं खाना खाने के लिए जाता था तो मेरी वापस जल्दी होती थी कि मैं अपनी सीट पे जाऊँ, मैं काम करूँ, क्योंकि मुझे हमेशा मेरे काम ने एक्साइट किया, मुझे हमेशा ना मोटिवेट किया मेरे काम ने कि मैंने काम करना है। तो मेरी हमेशा जो है ना फोकस ये होता था मैं वापस जाके काम करूँ, और अल्लाह ने उसकी वजह से मुझे विजिबल किया लोगों के सामने। तो मुझे ऑफर मार्केटिंग से खुद आई क्या बात है। अच्छा। जब आई तो मैंने इनकार कर दिया उसके बॉस ने मुझे बिठा के समझाया। अच्छा, फिर भी जब मैं जा रहा था तो मैं इतना जज्बाती था, क्योंकि मैं बेसिकली एक जज्बाती इंसान हूँ। मेरे बॉस को मैंने कहा सर ठीक है, आपके कहने पे जा रहा हूँ, 2 साल लगा के वापस आऊँगा। उन्होंने कहा डन, मैं तुझे लिख के देता हूँ, तू 2 साल बाद कहेगा, मैं तुझे 1 मिनट में उठाऊंगा। वहाँ जाके अंदाजा हुआ, क्योंकि जब वहाँ गया तो आई वॉज फर्स्ट नॉन लम्स, नॉन IBA, नॉन इंटरनेशनल डिग्री पर्सन जो मार्केटिंग में चला गया था। बिजनेस साइड पे होते ही नहीं थे टेलीकॉम के। एंड I was an alien there, honestly telling you. And this is, again, a lot of interesting themes in your life, but for most people, that will be the death of their career because of insecurity. Yes. Right? So there are 2 ways to look at it. एक ये है कि यार, okay, this is an opportunity and it's a challenge, right? So for a lot of people, मेरे लिए ना, what excites me is challenge. मेरी लाइफ में जैसे ही मैं comfortable होने लगता हूँ ना, मैं बेगम को जाके बोलता हूँ, बेगम अब कुछ सीन बैड हो रहा है। पब्लिक को लग रहा होता है कि यार इसका तो सीन ऑन ही आज हुआ है, और मैं कहता हूँ बेगम अब सीन ऑफ लग रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा पैड़ा करते हैं, बट ग्रोथ उससे आती है। और दूसरा तरीका ये होता है कि बंदा जाता है और जाके जैसे ही आप चैलेंज होते हो और अनकंफर्टेबल होते हैं ना, बंदा कहता है यार मैं तो था ही निकम्मा, क्विट करो। अभी तक तो बेवकूफ़ी में, इम्पोस्टर सिंड्रोम में यहाँ तक आ गए, ठीक है, लोगों को जाली अक्स दिखा के, अब यहाँ पे जलालत होगी। तो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, राइट, कि क्योंकि लम्स, लेट्स से नास्ट, GI के, IBA, इनके बच्चे कितने ही निकलते हैं। मेजॉरिटी पाकिस्तान के बच्चे जो आ रहे हैं वो दूसरी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और वो किन चीज़ों में मार खा रहे हैं, वो कम्युनिकेशन में मार खा रहे हैं, उनके इंटेलेक्ट के ऊपर आप शायद वो नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। तो हाउ डिड दैट एक्सपीरियंस? सो ये बड़ा मजे का, और ये एक्चुअली बिल्कुल जेन्युइन चैलेंज था जो मैंने फेस किया, फ्रॉम माई, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रॉम माई ड्रेसिंग टू द वे ऑफ कम्युनिकेशन, to the fact that how they greet and meet each other, to the fact that how, and if I be very honest, how do they look at me, right? वो जो derogatory एक feeling होती है ना आपको आना, और आप ऑफिस में एंटर हो आना, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग 100%, बट 80-20 का रेशियो होता था, 80% लोग एक्सेप्ट ही नहीं किया। और यार वो बड़ा सबकॉन्शियस सा होता है, दे इवन वांट टू एक्सेप्ट इट, बट वो एक ना सोशल एस्पेक्ट होता है कि यार ये पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी का है, तो वो ना चाहते हुए भी वो एक चीज़ आ रही है। कल्चर है ना, उनके कल्चर में मैं मिसफिट था। 80-20 की रेशियो से मिस 20% मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करते थे, 80% सामने कहते थे तुम कौन, ये वो टाइम लगाएगा। मेरी नेचर जो है ना बड़े मजे की है। मैं जैसे आप कह रहे थे, मुझे तो चेंज से तो आई जस्ट लव चेंज, मैं खुद पंगे लेता रहता हूँ, और इस पर मैं आपको बाद में एक बड़े मजे का वाक्य भी सुनाऊं, बट मैं फाइटर हूँ। मुझे ना खुशी होती है कि अच्छा अब आ जाओ। मुझे ना दो मसले हैं मेरी जिंदगी में, एक आप मुझे चैलेंज दे दें, आपके ये काम करना है नुमान, उसके बाद मुझे छोड़ दें, मैं कर दूंगा, मेरा बॉस जो भी रहा है ना उसको ये पता है। अगर मुझे कहेंगे ना ये काम करना है, ऐसे करना है, मैं कर ही नहीं सकता, मैं या उधर ही मना कर दूंगा, या फिर वो मेरे से करा ले। कोई ऐसा बॉस नहीं है मेरा जिंदगी में आज तक जो मुझे अपनी मर्जी से चला सका इस तरह के। ये हाँ, मुझे बता दें, अगर मैं सही ना करूँ तो आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। ये नहीं हो सकता कि आप मुझे माइक्रो मैनेज करें, वो मैं चल नहीं सकता। दूसरा मेरा बहुत बड़ा मसला है, आप मुझे जिस मर्जी चैलेंज में डाल दें, मैं क्विट नहीं करूँगा। लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी, आई विल डाई, मैं घुस जाऊंगा, मर जाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। मेरे लिए आप यकीन करें, ये इतना बड़ा चैलेंज था ऑन अ पर्सनल लेवल कि जहाँ पे मेरी ड्रेसिंग को भी क्वेश्चन किया जाता था, मेरे बोलने के स्टाइल को भी क्वेश्चन किया जाता था, सब कुछ करते थे। मैं कॉन्स्टेंटली लर्न करता था, और वो लोग जो मुझे क्वेश्चन करते थे ना, उनको जो बात की समझ नहीं थी, और ये अल्लाह ताला की तरफ से, अगेन मैं प्लान नहीं कर रहा था, आई वॉज अ वेरी शार्प लर्नर। उनको ये समझ नहीं आती थी कि मैं ये देख रहा हूँ, वो मुझे चैलेंज करते थे, और उनको ये समझ नहीं आती थी कि मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने उनसे बेहतर कैसे होना है। आई हायर्ड द बेस्ट पीपल अंडर मी जब मुझे मौका मिला। इवेंचुअली अल्लाह का शुक्र है, आई डोंट सी एनी कॉम्पिटिशन देयर टुडे, एंड आई बिकेम द स्टार इन लेस देन 3-4 years. I became the top man for my boss. He mentored me for my entire career. I was the most aggressive promotions जिसको सबसे ज़्यादा मिल रही थी, रिसोर्स स्टार परफॉर्मर इन दैट डिपार्टमेंट, जहाँ पे मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं था, बट ओनली बिकॉज ऑफ 2 things. मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, मेरा कोई रेफरेंस नहीं था, मेरा कोई जानने वाला नहीं था। एक, मैंने मेहनत से कभी नहीं घबराया। दूसरा, मैंने प्रायोरिटी अपने बिजनेस के ऊपर कभी किसी चीज़ को नहीं दी। मेरी नौकरी मेरी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी थी, टू एन एक्सटेंड के मेरे नाना की डेथ हुई, मेरे ऑफिस में किसी को नहीं पता था। मैं डेथ पे, क्योंकि वो ऑफिस के पास ही जनाजा गाह थी, मैं जनाजे पे गया, मैं घर नहीं गया, और जनाजे से वापस ऑफिस चला गया खाने के ब्रेक में,
और मुझे ऑफिस में किसी को नहीं पता था कि मेरे नाना की डेथ होगी ना मैंने बताया ना, नीदर आई टुक एडवांटेज कि मेरे नाना की डेथ हुई। मैंने कभी किसी को कोई रीज़न ही नहीं दी कि वो मुझ पर डाउट कर सके। मैंने स्मोकिंग कभी नहीं की, मेरे पास कोई मुझे ये नहीं कहता था ये 5 मिनट ज़ाया करता है। मैंने मेक श्योर किया कि लोगों को मेहनत मेरी सिर्फ रिजल्ट्स में नज़र नहीं आ रही, डे टू डे नज़र आ रही है, और अल्लाह का शुक्र है दैट इवेंचुअली पेड ऑफ। पीपल स्टार्टेड ईदर एक्सेप्टिंग मी एज इन अ पर्सन, क्योंकि माई बॉस रियली हेल्प मी इन ग्रूमिंग, उन्होंने मेरे साथ साथ उस लेवल पे लाके खड़ा किया जहाँ आज मैं हूँ। इंटरेस्टिंग। मार्केटिंग में आपने कितना टाइम गुजारा? Almost 8 years. And then how did the switch happen from marketing to sort of banking and finance? So marketing technically telecom में ना marketing product and marketing होता है. So product में I joined in the department जो कि वैस था, value added services. उन दिनों में ये नया चल रहा था कि टेलीकॉम ने MFS करना है, तो ईजी पैसा, यू पैसा, जैस का, ये सब प्लानिंग फेजेस में थे। तो ईजी पैसा ने लॉन्च कर दिया। उसके बाद मेरी टू माई लक उस वक्त कोई बैंकिंग को सीरियस ही नहीं लेता था, तो सारे वैस में जितने लोग थे ना वो उसको पकड़ते ही नहीं थे। तो जिस वक्त कोई नहीं मिला तो उन्होंने कहा अच्छा ये वाला बच्चा जो है ना बिल्कुल फारिग है ये वाला काम इसको दे देते हैं। तो मैंने कहा जी आप करेंगे? मैंने कहा मुझे जो मर्जी देते कर लूँगा, मैं तो काम बताएं मैं कर लूँगा। लकीली फॉर मी अल्लाह ताला प्लेड हिज रोल। आई वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। मैंने वो पकड़ा, हमने बैंक एक्वायर किया, वो एक अमेजिंग लर्निंग थी। मैं एक एग्जीक्यूटिव लेवल का बच्चा था, मुझे जो है वो कंसल्टेंट्स के साथ भी डायरेक्ट होना पड़ गया। क्रॉस फंक्शनल टीम बनी, जिस क्रॉस फंक्शनल टीम में मेरे से 8 ग्रेड सीनियर लोग थे। उन लोगों को कुछ नहीं पता होता था, क्योंकि मैं कर रहा था तो मुझे सबसे ज़्यादा, अंधों में काना राजा था मैं लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पता था उस वक्त। फिर बैंक एक्वायर किया, लॉन्च किया। अच्छा, उसने एक मुझे सही इंडस्ट्री में डाल दिया। जो लोग समझते थे गलत है, हमने नहीं इधर जाना। आज आप अगर देखें तो टेलीकॉम में और डिजिटल में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। डिजिटल इज फ्यूचर, टेलीकॉम इज लाइक मैच्योरिटी में, और कुछ ना भी हो तो एटलीस्ट मैच्योर्ड है, राइट? मैं 3 इंडस्ट्रीज में एक्सेप्टेबल हो गया 5 साल बाद। मैं टेलीकॉम में भी एक्सेप्टेबल हूँ क्योंकि मैं डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में MFS किया हुआ है। मैं बैंकिंग में भी एक्सेप्टेबल हूँ क्योंकि मैं बैंकर हूँ, ठीक है, मैंने की तो उधर से भी बैंकिंग हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बैंकर भी बन गया। मैं टेक में भी इस वक्त एक्सेप्टेबल हूँ क्योंकि बहुत सारे फिनटेक्स हैं जिन सबको टेक्नोलॉजी और फाइनेंस दोनों का एक्सपीरियंस चाहिए, मेरे पास दोनों का है। Doing MBA finance, I turned into a technologist because of a passion, right? And I learned everything, and I built a bank altogether as well today. So Zindagi is built with my own hands from scratch till date, right? So अल्लाह का शुक्र है, वो अल्लाह ताला ने उस वक्त एक जगह पे डाला जिसको सब इग्नोर कर रहे थे, और उन्होंने एक सजा के तौर पे कहा कि इसको दे देते हैं। And it worked out. So you moved to at the time वो जो इनका था ब्रांचलेस बैंकिंग स्टार्ट हो चुका हुआ था जी। जब मैंने जी बिल्कुल, मैंने 2 ब्रांचलेस के एक्चुअली इनिशिएटिव लॉन्च किए यूफोन में। सो यूपैसा मैंने लॉन्च किया, आई वाज हेडिंग दैट वेरी सेगमेंट जब यूपैसा हमने लॉन्च किया। फिर मैंने मीज़ान यूपैसा लॉन्च किया, मीज़ान के साथ मिलके के इस्लामिक वर्जन ऑफ यूपैसा लॉन्च किया। उसके बाद देयर वाज अ मैनेजमेंट चेंज, सो आई डिसाइडेड टू मूव आउट बिकॉज द न्यू मैनेजमेंट नेवर हैड दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन डिजिटल। अगेन वो फिर टेलीकॉम माइंडसेट था कि नहीं ये नहीं करना, सिर्फ टेलीकॉम करना है। मेरे पास अच्छा टाइम था, सो आई जस्ट अगेन टुक अ लीप ऑफ फेथ, लेफ्ट टेलीकॉम, वेंट इनटू अ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन बट गेव अ ईयर देयर। एक इंटीग्रेशन वो थी, कंपनी थी, स्विच कंपनी थी, PSP होती, उसमें चला गया, साल सवा साल उधर लगाया। साल एक्चुअली उनसे जो वादे किए थे, राइट, मैं कभी ये नहीं करता, मैंने कभी मिसकमिट नहीं किया। मैं कभी अगर कोई बात कर दूँ फिर जो मर्जी हो जाए पीछे नहीं हटता। तो आई कमिटेड विद देम समथिंग, मैंने वो पूरा किया और 13वें महीने पे मैंने रिज़ाइन कर दिया। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ नॉट वेयर आई शुड बी, क्योंकि मुझे वहाँ पे ये लगता नहीं था, फैक्ट था, मैं 10% यूटिलाइज हो रहा था। इरिस्पेक्टिव कि मुझे पैसे क्या मिल रहे हैं, इरिस्पेक्टिव मुझे वो खुश नहीं करता था। मुझे सारा दिन बिजी रहने की आदत है। मैं 13वें महीने पे रिज़ाइन किया, वेंट इनटू ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, बैंक्स में चला गया। जो बैंक्स में आप गए, दैट JS Bank. So मैं बिल्कुल so बीच में छोटा सा एक स्लॉट मैंने कराची में एक और बैंक में लिया था, लेकिन मैं कराची सेटल नहीं हो सका। तो अब अगेन वो भी वो टाइम था जैसे कि अब देखें, एक स्टेटस को मैनेज करने के लिए भी आपको एक सर्टेन इनकम लेवल चाहिए होता है ना। अब ये वो दूसरा रिश्ता, आप उसको गलतियां, मतलब आप लर्निंग है ना, दूसरा मेरे लिए इट टर्न पॉजिटिव अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने रिस्क लेते हुए कभी नहीं सोचा। मैं एक बैंक में गया, 2.5 महीना 1.5 महीना गुजरा, जिसके मैंने घर से ढूंढना शुरू किया कराची में, फैमिली को मूव करने की प्लानिंग की। मैंने फिगर आउट कर लिया दिस इज़ नॉट मी, ये नहीं हो सकता कि मैं रोज़ सुबह आयतुल कुर्सी पढ़ के जा रहा हूँ, मेरे घर वाले बाहर हैं, मुझे टेंशन है, हम रहते हैं बिल्कुल डिफरेंट। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, मैंने एंड आई क्विटेड। मैं 2.5 महीने बाद मैंने कहा जी प्रोविजन है, 1 दिन का नोटिस है, ये पकड़े, मैं जा रहा हूँ। मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, मैं गाड़ी स्टार्ट की और मैं इस्लामाबाद के लिए निकला और घर वालों को बताया मैंने रिज़ाइन कर दिया है। तो माई वाइफ वॉज सीरियसली टेंस्ड
क्योंकि उसको ये पता क्या था कर ये दिया क्या ना। कर रही है, मेरी बेटी स्कूल जा रही थी, मतलब तुम्हें पता है, और ऑब्वियसली हम कोई साथ साथ ग्रो कर रहे थे, साथ साथ चीज़ों को स्टेबलाइज कर रहे थे, उस वक्त भी लोन्स भी थे, सब कुछ था। नौकरी मैंने कहा कोई नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं कराची से निकला, मैंने हैदराबाद के करीब मेरा ख्याल है बेगम को बताया, और मैं जब मुल्तान क्रॉस कर रहा था तो मेरे पास दूसरी नौकरी थी। अच्छा। JS बैंक से। Come on. And what did you join JS Bank So as? I joined JS as head of branchless banking. Right. It has been a great journey for me. मैंने 2017 में जैसे कि JS ज्वाइन किया तो branchless एक Jcash नाम का इनका पोर्टफोलियो चल रहा था, जो कि it was a loss making venture of around $1 billion a year, नुकसान कर रहा होता था। took it up. उस वक्त मैनेजमेंट को समझाया कि इसका डायरेक्शन चेंज करूँगा, जो भी मैं कर सकता था इन माई कैपेसिटी किया। इन लेस देन 2 years उसको प्रॉफिटेबल कर दिया। राइट, नेगेटिव से पॉजिटिव पे ले आए, चाहे मार्जिनली प्रॉफिटेबल क्या, लेकिन ऑलमोस्ट 1 अरब का फायदा होना शुरू हो गया। बर्न तो नहीं हो रहा ना, एग्जैक्टली, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बैंक के लिए बर्न बंद कर दिया, 50-60 मिलियन बना लिया। हाँ। जब वो बना लिया तो एक रियलाइजेशन बैंक में ऑब्वियसली आना शुरू हुई। अगेन इट इज़ नॉट ईजी टू गेट योर सेल्फ एक्सेप्टेड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन व्हेन यू आर वेरी यंग। सो अगेन आई वाज द यंगेस्ट SVP, फिर मैं EVP हो गया, वो भी यंगेस्ट था। इतना आसान नहीं होता लोगों के लिए उसको एक्सेप्ट करना। फिर बैंकिंग फर्टिनिटी का मेंबर ही नहीं था, मैं तो टेलीकॉम साइड से आया था। और बैंकिंग इज लाइक अ बॉयज क्लब, राइट? लाइक सीरियस बॉयज क्लब। हाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी से, कहाँ है, क्या है, किस तरह। Obviously training, and I respect them for that. It is a very old industry and there is a reason it exists so strongly. Regulator बड़ा अच्छा है, बैंकिंग की उनके डिसिप्लिन बड़े अच्छे हैं, पॉलिसीज प्रोसीजर मेरी तरह नहीं होते, नी जर्क रिएक्शंस नहीं देते, एडहॉक डिसीजंस नहीं लेते, बड़े तगड़े होते हैं, अपने प्रोसेस से चलते हैं। उसमें एक सीनियर लेवल में आपका आ जाना इतना इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो अगेन इट वाज अ फाइट, एंड देन मेरे लिए ये भी था कि मैं कराची नहीं बैठता था, तो मैं आई केम ऑन माई ऑन टर्म्स। बैंक में मैंने बैंक जाने से इनकार कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा, कराची नहीं आता। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आप इस्लामाबाद बैठ जाए। फाइन, इस्लामाबाद बैठ जाते हैं, एक्सेप्टेबल। अब जब आप दूर बैठे हैं तो वैसे भी आपका परसेप्शनल वैल्यू डिफरेंट है ना। फिर मैं जा भी रहा हूँ तो कम जा रहा हूँ, बड़ा डिफरेंट था। 2.5-3 साल लगे। आई वेंट थ्रू not only hot water, boiling waters in this bank as well. My courtesy, my president, courtesy the chief operating officer, courtesy the sponsors, they were always there supporting me, making sure कि मैं survive कर रहा हूँ, giving me the opportunity। मेरे survival का एक ही काम है, मुझे काम दिए रखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने काम में बिजी हूँ, बस ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, उसमें engaged रहा। 3 साल बाद पूरे बैंक को ये रियलाइज़ हुआ कि यार, और वो भी अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी। आपको बड़ा मज़े का किस्सा सुनाता हूँ। सो वन फाइन डे आई वाज इन कराची, मेरे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा यार एंड ही इज़ अ जेम, उन्होंने कहा आपको CIO लगा रहे हैं। मैंने कहा एक्सक्यूज सर, मेरा क्या ताल्लुक CIO से, आई एम नॉट एन IT गाय। मैं आप लोगों को अच्छा लगता हूँ क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी में बातें कर लेता हूँ। आई एम अ टेक्नोलॉजिस्ट, नॉट अ हार्ड कोर टेक्नोलॉजी पर्सन। CIO इज़ अ पोस्ट जो कि हार्ड कोर टेक्नोलॉजी के लोगों की होती है, पढ़ा भी हो, किया भी हो। उनका जी मसला ये है कि वी हैव अ सिचुएशन, आवर CIO हैज़ रिजाइंड, वी डोंट हैव अ सेकंड ऑप्शन, वी हैव ट्राइड मल्टीपल थिंग्स, यू नो इट। उस वक्त तक 3-4 CDO, मेरे 3-4 बॉसेस भी बैंक में चेंज हो चुके थे। उनका जी अभी तो आपको CIO बना रहे हैं, लेट्स गो टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास गए, प्रेसिडेंट ने मुझे कहा जी प्लीज टेक इट ओवर, बट इट विल बी अ टेम्परेरी पोस्ट, ऑब्वियसली एक्टिंग चार्ज, और आप ले लें 2-3 महीने में विल फाइंड समवन, कर लोगे। मैंने कहा करने को तो कुछ भी कर लूँगा। 2-3 मेरी रिक्वेस्ट हैं, वो मैंने उनको कुछ कहा, तो 3 चीज़ें जो मेरे थे कि इसको अच्छा, और उनमें एक ये थी कि मुझे परमानेंट नहीं करना। मैंने कहा व्हाट आर यू सेइंग? मैंने कहा मैं तो तुम्हें पहले बता चुका हूँ एक्टिंग है। मैंने कहा मैं आपको फिर कह रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ करियर प्रोग्रेशन फॉर मी, आई डोंट सी माई सेल्फ एज CIO, आई डोंट वॉन्ट टू बी CIO। लक प्लेड इट्स रोल। नवंबर में मैं CIO एक्टिंग लगा, 5-1 महीने बैंक को लगे नया CIO लाने में। वो 5 महीने में मैं CIO रहा, और मैं कराची मोस्टली रहा, प्रेसिडेंट के साथ, लीडरशिप टीम के साथ काफ़ी काम करने का मौका मिला। और IT क्योंकि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही IT होता है, और उस वक्त तक IT प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा था। मतलब आपकी ब्रांचेस सारी की सारी चीख रही होती थी, ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा। मुझे अल्लाह ने आइडियल टाइम पे आइडियल जगह पे डाल दिया। मेरा अगेन जो मेरी नेचर है, मैंने एग्रेसिव डिसीजन लेना शुरू कर दिया। जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी, मैंने दोस्तों को एंगेज किया, बुलाया, मैंने कहा बताओ व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। 2-4 लोग इंडस्ट्री के टॉप के उठाए, डाल दिए, मैंने कहा करो जो करना है। बोर्ड में गया, बोर्ड में जाके मांगी चीज़ें, अल्लाह ने किया, बोर्ड वॉज काइंड इनफ, उन्होंने भी मुझे अप्रूवल दे दिए। मैंने 5 महीने के अंदर पूरा का पूरा IT इंफ्रास्ट्रक्चर रिवैम्प कर दिया। मैंने पूरा टेक रिवैम्प किया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारे, ठीक है। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रिवैम्प किया, पूरी DR बनाई। दिस इज ऑल डन इन 5 months, एंड दिस इज ऑल एज एन एक्टिंग across JS Group, across JS Bank, across JS Bank, everywhere, right?
और इवेंचुअली व्हेन आई लेफ्ट द CIO slot again when someone was hired finally, I very happily gave it back to him. मुझे एक हफ्ते बाद वो प्रेसिडेंट जिन्होंने मुझे कहा कि ये एक्टिंग होगा और मैंने उन्हें कहा एक्टिंग होगा, एक हफ्ते बाद उन्होंने रात को 12 बजे मुझे घर बुलाया, उन्होंने कहा यार टेक इट ओवर. मैंने कहा सर मैंने आपको पहले कहा था ये परमानेंट नहीं हो सकता. उसके बाद और मैं इतना अपने आप को, मुझे अल्लाह ताला पे बड़ा प्यार आता है, अल्लाह ताला इतना प्यार करते हैं. हम जैसे गुनाहगारों से भी फैक्ट है कि हम बहुत गुनाहगार हैं. मुझे बोर्ड ने बुला के कहा कि तुम CIO परमानेंट हो जाओ. मैंने कहा मैं नहीं हो सकता. मीनवाइल CDO छोड़ के चले गए तो सारों ने कहा अच्छा अब तो CDO भी तुम हो, तुम CDIO बन जाओ. मैंने कहा सर CDO बन जाऊंगा, दैट्स माई करियर प्रोग्रेशन. IT में नहीं रखूंगा. फाइनली खुद बंदा ढूंढा, इंटरव्यूज किए, खुद किए, CIO हायर किया, उसको हैंड ओवर किया. मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, मैं जा रहा हूँ. एंड एवरीवन वाज अमेज्ड. इट्स अ मेजर बजट ना, इट्स अ मेजर वर्टिकल आपका, मतलब इट्स अ बैकबोन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. No one leaves it. Yeah. And I was persistent on leaving it and I left it. तो मेरी बॉस ने मुझे कहा for a chief digital role which is effectively a new role, you don't even know where it goes. Yeah, and it is 5% of CIO's portfolio. Yeah. ठीक है. And 95% portfolio छोड़ दिया सिर्फ एक बेसिस पे. I don't see it as my career progression. And अलहम्दुलिल्लाह जो असूल बनाता हूँ उस पर कायम रहता हूँ. और and then लोगों ने वैल्यू भी किया कि अच्छा यार ये क्या. जब मैं CDO बना, मैंने बॉस को कहा, मैंने कहा 1.5 से 2 साल, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता बैंक में डिजिटल पे करने को भी काम होगा. अच्छा ठीक है कर तो सही ना. एंड मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 18 महीने में मैंने नंबर 2 हायर किया हुआ था, उसको नंबर 1 किया, CDO शिप छोड़ दी. अल्लाह ने किया अगेन, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई. मीनवाइल क्योंकि CDO जाते रहे. JS बैंक का ये बड़ा पुराना विजन था, 5-6 साल पुराना विजन था कि उन्होंने डिजिटल बैंक लॉन्च करना है. उन्होंने कहा जी ये तो नहीं हो रहा, मसले मसाइल. आई सेड नथिंग हैपनिंग, करते हैं. एक चैलेंज लिया, 9 महीने का टोटल चैलेंज पकड़ा. मैंने बॉसेस को कहा मैं 9 महीने में या लॉन्च करूँगा या नहीं करूँगा. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी, हमने लॉन्च कर दिया. तो मैं CDO था, साथ ज़िंदगी पूरा बना रहा था. राइट. तो IT अब मैंने ऐसे 3 महीने कॉमन देखे हैं जिसमें मैं IT भी चला रहा था, डिजिटल भी चला रहा था और ज़िंदगी भी बना रहा था. सो वो 3 महीने में टेक्निकली सोता नहीं था. टेक्निकली 2-2 घंटे सोता था मैक्सिमम. उधर ही कराची में ही रहते थे. कराची में जिस घर में मैं रहता था वहाँ पे 30 डेवलपर्स को मैंने घर के अंदर बंद किया हुआ था. दिन में दफ्तर जाता था, रात में वो मेजर जितने प्रोजेक्ट्स थे वो सारे मैंने 5 महीने में निकाले. एंड इवेंचुअली अल्लाह ने बड़ा करम किया. लास्ट ईयर जनवरी 18 तारीख को हमने ज़िंदगी लॉन्च कर दिया. अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी अल्हम्दुलिल्लाह. हाउ हैज़ ज़िंदगी बीन सो फार? ज़िंदगी हैज़ बीन अमेजिंग, वे अबव देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड ऑनेस्टली. मेरी आदत है, मैं कामयाबी के बाद बातें नहीं बनाता. जो फैक्ट होता है वो फैक्ट होता है. मैंने अगेन आदत है मेरी पंगे लेना, तो मैंने इसमें भी बहुत बड़ा रिस्क लिया था. एक जब मैं ज़िंदगी लॉन्च करने की बात हुई कि अब डिजिटल बैंक लॉन्च करना है, तो ऑब्वियसली प्लान सारे इधर थे. मैकेंजी की बड़े बड़े कंसल्टेंट्स की स्टडीज़ पड़ी हुई थी, ये करें ये करें ये करें. सबसे मेजर स्टेप क्या होता है किसी भी चीज़ को लॉन्च करने का? टेक स्टैक. तो आसान तरीका था, आप टेक स्टैक खरीद लें. पाकिस्तान मतलब मोस्टली जो है वो थर्ड पार्टी कंसल्टेंट को उठाते हैं, वो कहते हैं यार बना दो बना बनाया पड़ा हुआ है. बनाया पड़ा. मसला मेरे एक्सपीरियंस में ना, और उसमें मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन माइक्रो फाइनेंस जो आपके दूसरे कंपेटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं जिनको अपने दूसरी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ये था कि यार इस कंसल्टेंट को पकड़ो, इस कंसल्टेंट को पकड़ो, हम मार्केटिंग एंड ब्रांड्स करेंगे. एग्जैक्टली. उनका इट्स, मैं अभी क्या ही वो बोलूँ कि द लेवल ऑफ स्केल दैट दे आर ऑपरेटिंग इन. अब खैर उनमें से जो सबसे बड़े प्लेयर हैं वो तो अब काफ़ी हद तक उन्होंने इंटरनल कर लिया है, बट फॉर मोस्ट पार्ट उन्होंने मार इस वजह से खाई छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि उनको बना बनाया एक हार्ड लॉक्ड सिस्टम मिलता था. उसमें कोई प्रॉब्लम आती थी तो जब तक वो दुबई से कंसल्टेंट उड़ के नहीं आएगा वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी. सही है. एंड मेरे लिए ना सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही थी कि दुनिया में ये चीज़ नहीं हो रही थी. दुनिया में टेक वॉज एट द कोर एंड उसके आगे काम हो रहा था. पाकिस्तान में क्या हो रहा था कि हाँ टेक तो हो ही जाएगा, वो दुनिया से ले लेते हैं, वो तो दुनिया से ले लेते हैं. बेचना किस तरह, यार बिक तो जाएगा. हाँ एग्जैक्टली. क्रिएट अ सॉलिड प्रोडक्ट, इट विल सेल इटसेल्फ. द वर्ल्ड हैज चेंज्ड. यू डोंट नीड टू स्पेंड ऑन मार्केटिंग एज मच एज यू रिक्वायर टू डू इन द प्रीवियस वो. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू गाइस हैव योर ओन टेक स्टैक. या सो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि सो आई टुक अ चैलेंज अगेन, एक रिस्क. मैंने कहा जी टेक तो मैं खुद बनाऊंगा. If I have to be the digital bank, I can't have my dependency on a third party vendor. This tech stack I have to build. So obviously it was how did you convince them? Because yeah, that was very tough. Luckily for me तब तक मेरा ये impression board पे और management में पड़ चुका था कि जो कहता है कर लेता है, क्योंकि उनके major issues मैं निकाल चुका था. IT में, digital में बहुत कुछ प्रूव कर चुका था. उन्होंने कहा ठीक है तुम समझते हो कर लोगे. मैंने कहा बिल्कुल कर लूँगा, चल जाएगा. मैंने कहा जी चलेगा. फिर मैंने उनको एक चीज़ भी बताई. मैंने कहा देखिए एट द एंड ऑफ द डे मेरा विजन क्या, आपका विजन क्या है, हमारा विजन क्या है. हमारा विजन ये है कि डिजिटल बैंक बनाना है, बना लें. वो तो कोई बड़ा काम ही नहीं है. मतलब आप पैसा आपके पास है, बैंक है, इतना बड़ा ग्रुप है, पैसा लगाएं बन जाएगा.
आई अंडरस्टैंड एग्जीक्यूशन में हमने लैक किया और मेरी स्ट्रेंथ एग्जीक्यूशन मैं करवा दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा किसी ने अच्छा किया किसी ने बुरा किया, एग्जीक्यूशन में लैक था, मैं कर दूंगा, मैं तो 2 महीने में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि फ्यूचर विजन क्या है? फ्यूचर विजन ये है कि हम बहुत पेट्रियाटिक ग्रुप है, हमें पाकिस्तान में एक यूनिकॉर्न बनाना है, हमें पाकिस्तान से चीज़ें बाहर लेके जानी है। तो आप अगर ज़िंदगी बना रहे हैं और ज़िंदगी कल को सक्सेसफुल हो जाता है तो आप बाहर क्या लेके जाएंगे? ब्रांड। तो ब्रांड तो जेएस भी बाहर जा सकता है, बाहर तो जाना है टेक। देखिए दुनिया में जितने मुल्कों में यूनिकॉर्न सक्सेसफुल हैं या वो लोग फॉरेन रेमिटेंस लेके आ रहे हैं, किस चीज़ पे लेके आ रहे हैं? टेक बेच रहे हैं ना। तो जब टेक ही आपका नहीं है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट दे भी देता है, $50-100 मिलियन दे देता है, उसमें से $90 मिलियन तो आप उस पार्टनर को दे देंगे जो आपका टेक का पार्टनर होगा। तो आई एम नॉट गोइंग टू। और दूसरा, ये एक दुनिया चेंज हो चुकी है। जेनजी और मिलेनियल जैसे आप कह रहे हैं, छोटे छोटे पर्सनल पे जिंदगी साफ बन जाती है एंड यू हैव टू एक्ट वेरी रैपिडली, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली एजाइल। आपने देखनी है, यू हैव टू बी देयर 24/7। आप ये नहीं कह सकते सर 5 o'clock ऑफिस बंद चलेगा और जी अभी अमेरिका में रात है तो हमारा वेंडर नहीं मिला, ऐसे नहीं चलता। तो मैंने सर अप्रूवल लिया और हमने पूरा, आप सोचिए मैंने 9 महीने में जो बैंक लॉन्च किया उसमें मैंने 1 महीना मार्केटिंग में भी नहीं लगाया होगा। मेरे 8 से 9 महीने टेक स्टैक डेवलपमेंट पे लगे और वो भी ऐसे लगे कि हमारे पास एक छोटा सा ऑफिस होता था, उस ऑफिस के अंदर हमने 20-25 बंदों को बंद किया। हम सिर्फ वीकेंड पे संडे के दिन, सैटरडे के दिन घर जाते थे, सोते थे, बाकी हम सोते भी उधर ही थे, बैठते भी उधर। 3 महीने कॉन्स्टेंटली हमने जब तक प्रोटोटाइप डेवलप नहीं किया, हमें से कोई घर नहीं गया, हम उधर ही बैठ रहे, खाना भी खुद बनाते थे, मीठा बना रहे होते थे। बहुत एक एक्साइटिंग जर्नी है हमारी, छोटी सी स्टार्टअप स्टाइल और बड़ा ही नेक्स्ट लेवल का हमने सिर्फ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 9 मंथ्स में 100% वी आर द ओनली डिजिटल बैंक इन पाकिस्तान जिसका 100% टेक अपना डेवलप्ड है, अपना ऑन्ड है। उसकी जितनी एंसिलरी एप्लीकेशंस हैं जो कि मेजर कंट्रीब्यूट करती हैं, चाहे फ्रंट एंड हो, वो सारी हमारी हैं। और हम अभी भी कॉन्स्टेंटली ये काम कर रहे होते हैं कि जहाँ जहाँ हमारी वेंडर डिपेंडेंसी है ना, बिकॉज ऑफ द बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान, हम वो रिमूव करते जा रहे हैं। हम 100% अपना बिल्ड कर रहे हैं ताकि जब हम इंटरनेशनल जाएँ तो it should be a plug and play and we should not be dependent on anyone. Makes sense. I'm trying to understand because ये बड़ा complicated हो गया even for consumers. You've got banks, you've got digital banks, you've got digital wallets और उस तरह से. So you've got players like let's say SadaPay जो कि effectively इस time के ऊपर कह रहे हैं जी wallet in wallet out, you know sort of, and they're giving you a debit card as well. Then you've got एक step ऊपर है, on some cases wallet मिलता है आपको जिसके पीछे एक बैंक बैक्ड है जी। एंड इन सम केसेस अब हम ये सुन रहे हैं जो 5 डिजिटल बैंक लाइसेंसेस भी आए, सारा कुछ हुआ कि जी डिजिटल बैंक इंडिपेंडेंट होगा जी। सो वेयर डज जिंदगी स्टैंड इन दिस फ्रेमवर्क? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप अगर इसको सिर्फ 2-3 महीने पीछे ले जाएं, डिजिटल बैंक के लाइसेंस नहीं अवार्ड हुए, तब का सिचुएशन देखें तो 100% एब्सोल्यूट क्लैरिटी कैसे आती है। एक ब्रांचलेस बैंकिंग प्लेयर है, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस है या पीछे बैंक बैक्ड है ब्रांचलेस बैंकिंग प्लेयर। और उनका जो प्राइमरी मैंडेट है ना, प्राइमरी मैंडेट ये है कि उन्होंने वॉलेट ओपन करना है और प्राइमरी रिस्ट्रिक्शंस जो कस्टमर को तंग करती थी, 2 लाख से ऊपर की लिमिट नहीं है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, और बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए कोर से बने थे, बाद में सबने चेंज किया, जेनजी मिलेनियल की तरफ गए, लेकिन बने इसलिए थे कि पैसे भेजो। दूसरी तरफ आपके ट्रेडिशनल बैंक्स हैं जो कि कहते हैं आ जाए ब्रांच में अकाउंट खोल लें, 5 लाख रुपया रखें, अच्छे सूट पहन कर आएंगे तो आसानी से हो जाएगा, आम बंदा जा नहीं सकता, ऐप है, बड़ी डिसेंट सी ऐप है, इट वर्क्स वेल। स्टेट बैंक ने बैंक्स को भी बड़ा डिजिटाइज किया पिछले 5-7 सालों में। तो अब आप देखें तो हर बैंक की एक ऐप, अच्छी ऐप है, यू कैन डू एवरीथिंग विद दैट, लिमिटेड टू योर बैंकिंग एक्सपोजर, राइट? आपका जेनजी मिलेनियल वाली चस्के शस्के वो नहीं है। तीसरी तरफ है आपकी EMIs, जिन्होंने पहली बार आके जेनजी मिलेनियल को टारगेट किया। अब उनके पास सिर्फ 2 ही एडवांटेजेस थे जो इधर वीकनेसेस थी ब्रांचलेस में। उन्होंने क्या कहा कि हम पेमेंट्स हैं, एक तो सारा काम नहीं कर रहे जैसे ब्रांचलेस कर रहा था, लेकिन हमारा वॉलेट जो है वो इंटरनेशनली यूजेबल है, राइट? ठीक है, तो हमारा जो कार्ड है वो भी इंटरनेशनली यूजेबल है। लेकिन लिमिटिंग फैक्टर इधर क्या था, अभी भी इनकी भी लिमिट 2 लाख की है। हम जब लॉन्च कर रहे थे तो हमने इसको, जब मैं बार कहता हूँ कि डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट अ डिजिटल बैंक, क्योंकि एक तो हमें लाइसेंस नहीं मिला, ऑब्वियसली हम वर्टिकल हैं, कमर्शियल। एक कमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस के होते हुए आपको कोई और लाइसेंस नहीं चाहिए टेक्निकली कुछ भी करने के लिए, ठीक है? आप डिजिटल बैंक का लाइसेंस लेके क्या करना चाह रहे हैं? आज से 10 साल बाद कमर्शियल बैंक बनना चाह रहे हैं, ठीक है? स्टेट बैंक ने इतना फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाया, इतनी फेवरेबल रेगुलेशंस निकाली कि हर एक को डिजिटल ऑनबोर्डिंग भी अलाउ कर दी, हर एक को आपने डिजिटाइजेशन पे पुश करता है उल्टा स्टेट बैंक कि आपकी चीज़ें डिजिटाइज होनी चाहिए। अब ये तो आपके ऊपर है ना कि आप कमर्शियल बैंक है तो आप सफ़ेद हाथी की तरह चलते रहें, या आप उसको यूटिलाइज करें उनकी प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी को। तो हमने क्या किया, जहाँ हमारा यूनिक प्रोपोजिशन बनी, हमारे पास ब्रांचलेस का भी लाइसेंस था, हमारे पास कमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस था, माइक्रो फाइनेंस नहीं था, राइट? हमें तो कोई चीज़ नहीं रोकती थी। हमने अपना डिजिटल बैंकिंग का एक
ब्रांड खड़ा कर दिया। ठीक है। और हमने इन दोनों लाइसेंसेस को मर्ज करके यूज किया। हमने ये नहीं किया कि जो जिंदगी वाज फ्रॉम डे वन नॉट अ ब्रांचलेस बैंकिंग इनिशिएटिव, राइट, नॉट एन EMI, इट Right. वाज टारगेटिंग Gen Z and millennial for their banking needs and full Commercial banking needs. commercial banking needs, right? Right. तो ये पहला अकाउंट आया जो खुलता डिजिटली था, लेकिन उस पर 2 लाख की लिमिट नहीं होती थी। राइट। ये पहला अकाउंट आया जो खुलता डिजिटली था, इंटरनेशनली भी यूज हो जाता था। ओके, सो लेट मी समझ आ गई। अब मैं इसको एक फ्लिप तरीके से लेता हूँ। मैं आज ज़िंदगी की ऐप खोलता हूँ, ठीक है, मेरे पास एक प्रॉब्लम एक साइन अप की ऑप्शन आएगी, मैं साइन अप करता हूँ। अच्छा, इसमें मैं काबियात ये ऐड करता हूँ कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ, जी, ठीक है, मैं एक फ्रीलांसर हूँ जो, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा जो नंबर एक्चुअली आ रहा है ना, रेमिटेंस का, फ्रीलांसर्स का, रेमिटेंस के अलावा जो सबसे ज़्यादा इस वक्त समझ लें कि वाइट इकोनॉमी में घुस रहा है वो फ्रीलांसर है इस वक्त, क्योंकि वो नया उसने काम सर्विसेज इंडस्ट्री में घुसा है। अब उसको है कि यार पेमेंट्स रिसीव सेंड, पहले तो अब्बा जी पैसे दे रहे थे, चल रहा था ऐसे ही, तो उसको बैंकिंग की ज़रूरत है। अब जब वो बैंक जाता है, इंतहा ज़्यादा इंटिमिडेटिंग एनवायरनमेंट होता है, उसको कंफ्यूजिंग होता है, उसको वो लोग समझते नहीं, उनको भी नहीं पता होता ये कौन है, और वो आपसे कहते हैं कि अब आप जाओ जाके फिगर आउट करो सारा कुछ और फिर हमारे पास आना। और वो बच्चा कहता है मैं किधर से पूछूं, मैं किससे पूछूं, मैं क्या करूं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं खोलता हूँ ऐप और मैं उसके ऊपर साइन अप कर लेता हूँ, तो मुझे क्या ऑप्शन आएगी? लाइक रन मी थ्रू द प्रोसेस। जी, सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। दे विल दिस ऐप विल जनरली आस्क ओनली फॉर योर बेसिक इन्फॉर्मेशन, योर बेसिक KYC, आपका ID कार्ड नंबर, आपके ID कार्ड से रिलेटेड चीज़ें, कुछ सीक्रेट क्वेश्चन जो कि ID कार्ड पे नहीं लिखे होते, जस्ट टू वैलिडेट योर KYC। उसके बाद अगर आप फ्रीलांसर हैं तो इट विल जस्ट आस्क यू एक बायोमेट्रिक, ऑब्वियसली, जो कि आप कैमरे से ही कर सकते हैं। दूसरा, आपकी एक अंडरटेकिंग, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई प्रूफ नहीं कि आप या आप वो दे दें कि अच्छा मैं इस प्लेटफॉर्म पे फ्रीलांसिंग करता हूँ, नहीं भी तो एक अंडरटेकिंग दे दें कि मैं, और वो अंडरटेकिंग डिजिटल है, कागज़ नहीं है, मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैं ये काम करता हूँ, दैट्स इट। आप छोटे लेवल का भी अकाउंट खुलवाएं जो कि इनिशियल अकाउंट है, फर्स्ट लेवल, तब भी क्योंकि मैं कमर्शियल बैंक हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको IBAN के साथ अकाउंट देता हूँ। सो डे वन से आपको, ठीक है, उसमें आपकी 2 लाख की लिमिट होगी, अगर आप एक अंडरटेकिंग दे देंगे लिमिट मिलियन पे चली जाएगी, जैसी वो लिमिट मिलियन पे चली गई। नहीं, सो अभी वही हुआ कि स्टार्ट में बिल्कुल बेसिक, आई डोंट हैव टू स्टार्ट ऑफ विद क्रेजी डॉक्यूमेंटेशन, नो, नॉट एट ऑल। मुझे वो छोटा अकाउंट मिल सकता है जो दूसरे दे रहे हैं, वो तो लेस देन 30 सेकंड्स में। हाँ, तो वो, और मुझे IBAN के साथ मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली IBAN के साथ मिलेगा, ठीक है, और उसमें स्पेसिफिकली होम रेमिटेंस अकाउंट, स्टेट बैंक का एक स्पेशल इनिशिएटिव है, वो इंटीग्रेटेड होगा, तो आप जहां मर्जी से पैसे मंगवाएं, ठीक है, और वो बस लिमिट उसकी पूरी है, उसकी लिमिट। अच्छा, अब वो मेरी लिमिट जो अचीव होना शुरू हो गई है, तो आप एक सादी सी डिजिटल अंडरटेकिंग देंगे और आपकी लिमिट 1 मिलियन रुपए पे चली जाएगी। ठीक है, तो ये लेवल 2 अकाउंट हो गया इफेक्टिवली डिजिटल अकाउंट, लेवल 2 अकाउंट, डिजिटल अकाउंट हो गया, आसान डिजिटल अकाउंट जो होता है। ठीक है, अब मैं जी, मेरा सीन ऑन है, मैं तो मिलियन भी मेरी छोटी गेम है, मैंने एजेंसी बना ली, ठीक है, अब मेरा 1 मिलियन से बढ़ रहा है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर हमारा डिजिटल अकाउंट जो है उसकी KYC, उसकी थोड़ी सी ज्यादा KYC होती है, लेकिन अगेन डिजिटल है, ठीक है। सो 8-10 इन्फॉर्मेशन है, आप डालेंगे, that will then turn you into a formal commercial banking account of JS. But you haven't gone to the branch till then. No way. And you will not go to the branch. No, you will never go to branch. Checkbook भी आ जाएगी आपके घर, कार्ड तो आपके पास day 1 पे आ जाएगा, less than 48 hours you'll get a card. Interesting. जहाँ पे बैंक आपको 15 दिन लगाएंगे, लेस देन 48 आवर्स आपके पास कार्ड होगा। पूरा एक्सपीरियंस फ्रॉम ओपनिंग एन ऐप, फ्रॉम रिक्वेस्टिंग कार्ड, फ्रॉम टेकिंग योर लिमिट्स टू अ हायर लेवल, फ्रॉम बायोमेट्रिक, चाहे वो कैमरा से करनी है क्योंकि आपकी मर्जी है, या आप घर बुला लें बंदा बायोमेट्रिक लिए, कोई इशू आ रहा है, कैमरा अच्छा नहीं है, वो भी, एवरीथिंग विल मेक श्योर आप घर बैठे कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ के लिए घर से जाना नहीं पड़ता, और एवरीथिंग वी मेक श्योर कि अगर हमारी कम्युनिकेशन आपसे हो रही है, 48 आवर्स इज द मैक्सिमम दैट वी हैव। आपका कार्ड 48 आवर्स, आपका चेकबुक 48 आवर्स, आपकी कोई उससे ज़्यादा भी नहीं हम लेके जाए। 18 महीने हो गए रफली लॉन्च को। कैन यू शेयर सम नंबर्स? या व्हाई नॉट। सो कुछ नंबर्स पब्लिक हैं, हमने माशाल्लाह वी आर अराउंड आई थिंक 7 million plus downloads, which is a massive number last year। बल्कि लास्ट ईयर में जो टॉप डाउनलोडेड ऐप्स थी उसमें 4th नंबर पे ज़िंदगी आई इन द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, विच वाज अमेजिंग फॉर अस। बड़े न्यू प्लेयर थे हम। वी हैव अराउंड 3.5 million अकाउंट्स विद अस, कस्टमर जिन्होंने प्रॉपर्ली अकाउंट, एक्टिव कस्टमर्स, क्योंकि अभी तो हमारा एक्टिव वैसे ही जो आप स्टेट बैंक की 3.5 million in 18 months it's quite something, it's quite something अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़े की बात, तो मज़े की बात यह है कि हमने इनिशियली यस मार्केटिंग पे बहुत पैसे लगाए, जो आप बात कर रहे थे ना, इफ़ यू हैव समथिंग टू सेल इट सेल्स ऑटोमेटिकली। राइट नाउ आई कांट शेयर द नंबर्स, बट मैं परसेंटेज में कहूँ तो मैंने बहुत डिक्रीज कर दिया अपना मार्केटिंग बजट, लेकिन
मेरी गेन जो है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो वो कस्टमर का वर्ड ऑफ माउथ है ना, अमेजिंग है, पीपल लव इट, पीपल। एंड देन क्योंकि हमने देखिए, मुझे जो सबसे बड़ा एडवांटेज लगता है ना, हमने डे 1 से जेन ज़ी और मिलेनियल को टारगेट किया था, तो हमने उनको इन्विजन किया था, हमने सब कुछ उनके मुताबिक बनाया। और आपकी सोच है कि वो कितना एग्रेसिव फीडबैक देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हमने गलतियां नहीं की, हमने बहुत गलतियां की 18 महीने में। हमारी एक स्ट्रेंथ ये रही है कि हमने गलतियों को एक्सेप्ट किया बड़ा ओपनली, जो मैंने वो ये ना फेल फास्ट ग्रो फास्ट वाली बात है। आपने, और दूसरा उनको रिस्पॉन्ड हम जल्दी कर सके क्योंकि हमारे कंट्रोल में था सब कुछ। मेरी टेक टीम 20 बंदों से इस वक्त को 250 बंदों पे जा चुकी है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मिला के, ठीक है। बट वी वर्क इन अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट। ये नहीं है कि वो 250 मेरा परमानेंट एम्प्लॉई है, चक्कर ही नहीं। जब मुझे जरूरत होती है वो मेरे पास होता है, फ्रीलांसर एनवायरनमेंट है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मेरी डेवलपमेंट की जो स्पीड है, इट इज़, मतलब मैं अगर ऑब्वियसली कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, लेकिन जब मैं किसी के साथ शेयर करता हूँ दे आर अमेज्ड जिस लेवल पे हम, और वो इस तरह हो रही होती है कि यार ये आज के 10 फीडबैक हैं, बताओ कल इन 10 में से 9 कौन से ठीक हो सकते हैं। वी डोंट लेट आवर कस्टमर्स सफर बिकॉज ऑफ आवर मिस्टेक्स फॉर मंथ्स। हमें फीडबैक आ गया, फिर देन देयर इज अ कंप्लीट पाइप, उसके अंदर वो डल गया। अब मैं एक बड़े मजे, मैं वन ऑफ आवर कंपेटिटर, तो मैंने उन्हें कहा यार ये तुम्हारा मसला है, मैं कमर्शियल बैंकों में हल कर सकता हूँ, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इधर से नहीं जाते। इट इज इन देयर फेवर, राइट, इट्स वेरी स्मॉल प्लेयर, देयर फेवर। अपने आप को ऑब्वियसली बहुत डिजिटल कहते हैं, तो मैंने कहा वंडरफुल, मैंने कहा डिप्लॉय अ टीम। मैं उनके सीईओ से बात कर रहा, मैंने कहा डिप्लॉय अ टीम, तो मैक्सिमम 2-3 दिन लगेंगे मेरी टीम को, हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। उसने कहा ये तो ठीक है, लेकिन मैं तो अभी 1.5 साल तक कोई डेवलपमेंट ऑन ही नहीं कर सकता, मेरी तो पाइपलाइन चल रही है। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, कीप इट हैपनिंग, आई कांट रियली हेल्प यू। 1.5 साल में तो दुनिया किधर होगी भाई। बट उसका 1.5 साल का डेवलपमेंट लॉक थी, मतलब उसका ये टाइम नहीं था कि मैं उस आई कैन ऑब्वियसली इमेजिन शायद उसने प्रायोरिटी ना दियो, बट देन अगेन अगर वो 1.5 साल कह रहा है तो 6 महीने तो डेवलपमेंट कर रहे होंगे। एब्सोल्युटली, इट्स क्रेजी। आप आज के दौर में यू कांट डू दैट, आप कर ही नहीं सकते, यू आर गोना डाई भाई। आपका CI/CD इंप्लीमेंट ही इसलिए होता है कि आपने कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डेवलपमेंट करनी है। इट कांट रियली बी हेल्प्ड अगर आप सोए हुए हैं। अगर आपका 6 महीने का कैलेंडर लॉग है, मेरी IT टीम मुझे वापस आके बताए तो सही ना कि मैं 6 महीने कुछ नहीं कर सकता, सारे फायर होंगे उससे। तो दिन रात एक करना पड़ता है, एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर। मेक सेंस। 2 चीज़ें अगर मुझे आप बताएं। पहला तो ये कि पिछले दिनों हमने ये देखा भी कि बैंक्स के कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन आउट हुई पाकिस्तान में, क्योंकि हम डिजिटल की बात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं रिसेंट टाइम्स के ऊपर। आई हैड दैट कॉन्वर्सेशन, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, आई एम गोना कम टू दोज एज वेल, बट वन थिंग वी हैवंट टॉक्ड अबाउट इज द what you might call it, the safety of the information, the data, right? Data protection. वो unfortunately and recently there was a conference here in Islamabad as well, 2-3 दिन पहले, उस पर भी एक बहुत बड़े ग्रुप के CEO आए हुए थे, उन्होंने बोला कि जी पाकिस्तान का डेटा पाकिस्तान में होना चाहिए। मुझे उसमें शायद इतनी कबाहत नहीं है कि पाकिस्तान का डेटा पाकिस्तान में या बाहर पड़ा हुआ है या किधर पड़ा हुआ है, होना चाहिए, डेफिनेटली पाकिस्तान में होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क मेरा ज़्यादा बड़ा ये है कि भाई अगर वो आता है पाकिस्तान तो वो किस तरह पड़ा हुआ है, वो क्या कार्टन्स में खुला पड़ा है, गिर रहा है, या एक अच्छे से वॉल्ट में पड़ा हुआ है। सो वेयर डू यू स्टैंड ऑन दैट? सो आई थिंक जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन उनसे भी बिल्कुल ठीक था। डेटा कहाँ पड़ा है इस पे तो शायद इतना कुछ चीजें होती हैं जो कि नेशनल लेवल डिसीजंस होते हैं, आपने उसको देखना होता है क्योंकि उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं ना। विदाउट सेइंग वो रखें, वो एक बड़े लेवल का क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए, दैट्स नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द सिक्योरिटी ऑफ इट। एग्जैक्टली, देखिए डेटा कहाँ है वो तो आप नेशनल लेवल डिसीजन ले लें, क्योंकि आपकी सॉवरेनिटी है, कुछ भी है, हम नहीं बोल सकते, ठीक है, व्हाटएवर द डिसीजन इज। डेटा पड़ा कैसे है ना, ये सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान में कितनी ऑर्गेनाइजेशन है जो GDPR कंप्लाइंट है? क्वेश्चन आप पूछ के देखें। पाकिस्तान में कितनी ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटा एट रेस्ट को इनक्रिप्ट करती हैं, ठीक है? पाकिस्तान में कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी इनक्रिप्शन इतनी सिक्योर है कि वो डिक्रिप्ट ना हो सके आम तरीके से, ठीक है? फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस हमारे बड़े तगड़े हो गए, और वो भी इसलिए हो गए क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। सो फॉर एग्जांपल किसी के लिए इतना आसान नहीं है कि वो किसी बैंकिंग सिस्टम के अंदर घुसे और घुस के पैसे निकाल के ले जाए, राइट? बट दोज आर सम 3-5-4 लेयर्स ऑफ इंटरनेशनल लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी जो सबने अप्लाई की है, स्टैंडर्ड है, आप ये फायरवॉल लगा लें, ये कर लें, ये कर लें, कर लिया। अब दिन में लाखों टैक्स आप पे आ रहे हैं साइबर, आप उनको अवॉइड करें, खुदा ना खास्ता अगेन, मतलब इसमें तो CIA भी सेफ नहीं हो सकता ना, जब होना है तो हो जाना है, इसमें कोई आप कर, बट ऑब्वियसली जो बेसिक लेवल जितना है। सो उससे बड़ा मसला ये है कि जो लोगों को साइबर सिक्योरिटी में 2 पर्सपेक्टिव होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल थ्रेट और एक होता है इंटरनल थ्रेट। फिर उस एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सप्लाई चेन थ्रेट होती है। सप्लाई चेन थ्रेट क्या है? मैं एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेयर हूँ, मेरे साथ 150 पार्टनर्स ने इंटीग्रेट करना है। इट डजेंट रियली मैटर कि मेरा साइबर सिक्योरिटी का जो पॉलिसी है वो कितनी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेड है ऑन मी।
ये बहुत मैटर करता है कि मेरा जो सप्लाई चेन है, जो मेरे वेंडर्स हैं, जो मेरे पार्टनर्स हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, इंटीग्रेशन, उनके एंड पे सप्लाई चेन क्या है. सो फॉर एग्जांपल उनके पास अगर डेटा जा रहा है तो वो किस फॉर्म में रख रहे हैं अपने पास, कागज़ पे प्रिंट कर रहे हैं, खुला पड़ा हुआ है, एक्सेल शीट बना लेते हैं. उनकी जो अपनी सिक्योरिटी लेवल है वो कितने लेवल पे, हम तो इस चीज़ों को सोचते भी नहीं हैं पाकिस्तान में. पाकिस्तान में तो हमने अपनी सिक्योरिटी कर ली, अपने घर में 4 दीवारी बड़ी कर ली है, लेकिन मसला ये है कि अगर जो दूध लेके आ रहा है, दूध में वायरस ले आएगा तो वायरस तो घर में आ जाएगा. ठीक है, तो वो चीज़ें सोचने वाली हैं जो data has to be an extremely encrypted environment and it should not only be data at in transit, data at rest भी आपका encrypted होना चाहिए, GDPR compliant होना चाहिए. आपका डेटा पड़ा कहाँ है वो मैटर नहीं करता, वो सिक्योर कितना है वो मैटर करता है. एक्सेस कितना आपने किसको दिया हुआ है और किस KYC लेवल पे आप एक्सेस देते हैं, आप एक्सेस करने कितने ईजिली देते हैं. ये बहुत सारी चीज़ें जो कुछ कई जगहों पे बहुत अच्छी हैं, कई जगहों पे नहीं अच्छी. सो इंडस्ट्रीज how much of you guys, how much of all of this are you guys implementing? Since we aimed from day one that we have to go international, हम इसको 100% इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे चलाते हैं. अभी वी आर सिर्फ दी कपल ऑफ एलिमेंट्स दैट आर लेफ्ट विद अस, उसमें जैसे GDPR कंप्लायंस है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि हमने इसको करना ही करना है. सो इररिस्पेक्टिव कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हम यूरोपियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक साइबर सिक्योरिटी, नॉट ओनली दी एक्सटर्नल साइबर सिक्योरिटी के अच्छा फायरवॉल्स लगा दिए, इंटरनल डेटा इंक्रिप्शन, डेटा कीपिंग, बुक कीपिंग, सप्लाई चेन रिस्क, अवेयरनेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी. आप ये देखें मैंने कार्ड पहना हुआ है, हो ही नहीं सकता मेरे ऑफिस में किसी ने एक्सेस के बगैर कोई अंदर आ जाए. इट इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. साइबर सिक्योरिटी सिर्फ ये नहीं होती कि आपने फायरवॉल क्या लगाया है. साइबर सिक्योरिटी ये कि मेरे ऑफिस में जो आ रहा है मुझे पता है या नहीं पता, और क्या उसके पास कोई एक्सेस है. अगर मेरा कार्ड दिन में 3 बार यूज हो गया, और मैं आपको बड़ी बेसिक सी बात बता रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस में 3 बार जाऊँ, चौथी बार मुझसे पिन मांगी जाती है. राइट, सिस्टम विल ऑटोमेटिकली आज के भाई ये 3 बार क्यों एंटर हो रहा है, और वेरीफाई कर लो कार्ड तो नहीं किसी और के पास. एम्प्लॉइज की अगर लैपटॉप है और ऑफिस लैपटॉप है तो उस पर अगर USB लगती है तो वो ट्रैक होनी चाहिए कि भाई ये USB क्यों आई है, कहाँ से आई है. क्या उनका जो हार्ड डिस्क में डेटा पड़ा है वो इनक्रिप्टेड है? 90% तो ये भी नहीं इनक्रिप्टेड होता. लोगों का हार्डवेयर लैपटॉप चोरी हो जाता है, सारा डेटा साथ चला जाता है, ऊपर इनक्रिप्शन लगी हुई है, अंदर नहीं लगी हुई. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन फॉलो अप टू दिस. For a lot of people, they're looking at banks or fintechs or digital finance as a money game. Yeah. And which is inherently everything is a money game. मेरे लिए it's not a money game, it's a data game, right? So you mentioned कि data के लिए बड़ी important है ये सारी चीज़ें करना, because customers के लिए important है, इसके लिए important है, उसके लिए important है, which is absolutely true. मेरे लिए इस वजह से important है because it's like that's your core product. And you protect it with your life. That's gold for you, and you can't just sort of leave it lying around. And within that breath, if I talk about data, I unfortunately have not seen. यहाँ पर काम बस ये हो रहा है कि ठीक है अभी digitize करें. First step digitize तो करो, but उसका second step एक आना है कि आपने पहला तो ये ना कि monetization of data भी एक वो है. पहला तो ये है कि सेगमेंटेशन ऑफ डेटा. हाँ, एग्रीड, तभी कर सकेंगे मोनेटाइजेशन. पता तो है क्या. हाँ, मेरे पास अगर 3.5 मिलियन कस्टमर्स हैं, आई शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि यार इसकी स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है, इसका ये क्या है, इसका वो क्या है. और रूडिमेंट्री लेवल ये बहुत कुछ हो रहा है, बट रियली इट्स अबाउट व्हेन यू बिगिन टू रेडिकली ऑप्टिमाइज दैट, व्हेन यू बिगिन टू अंडरस्टैंड कि यार अच्छा अब रास्ता आ गया, रास्ते के अंदर मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये स्पेंड किधर जा रहा है, क्या जा रहा है, मैं उस तरह की चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकता हूँ. देन आई कैन ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस. That's when I can get the right user and target them and provide them additional value. That value is what makes the money. I agree. Money is the last node where everybody's focused so much on the money, they're not focused on the data and the value generation. So in that case, how big is your data team and how elaborate is the work being done there? So that's a very important question. See, money is the last element. Yes, right? But from day one, you should know where you are going to make this money. We are a data-driven organization at core, right? And what helps me is my past experience. अगर पाकिस्तान में, at least to my experience, कोई इंडस्ट्री ऐसी है ना जो सही मानों पे data-driven रही है from day one, तो वो टेलीकॉम है. Absolutely. तो उससे में आदत डाली हुई है डेटा को डाइसेक्ट कर करके 23 मिलियन, और वो भी छोटा डेटा नहीं, 23 मिलियन कस्टमर का डेटा. इन यूफोन 23 मिलियन कस्टमर होते थे, उसको कोई 23,000 सेगमेंट्स में सेग्रीगेट करते थे हम, और हर सेगमेंट की टैगिंग होती थी, हर कस्टमर की प्रोफाइलिंग होती थी. उस प्रोफाइलिंग के मुताबिक हमें उसका नेक्स्ट स्टेप पता होता था. हम प्रिडिक्शन मॉडल, उस वक्त प्रिडिक्टिव मॉडल लगाते थे. हम उस प्रिडिक्टिव मॉडल की बेसिस पे चर्न भी प्रिडिक्ट करते थे, स्पेंड भी प्रिडिक्ट करते थे, और अकॉर्डिंगली स्पेंड इंक्रीज भी कराते थे, चर्न रुकवाते भी थे. ये सब कुछ जितना अच्छा मुझे टेलीकॉम ने सिखाया ना, और इतने मैसिव लेवल पे सिखाया है, वो हम सो एज जिंदगी इज अ डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन वे यू व्हेन यू साइन अप
वी कैटेगराइज यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि आपने साइन अप किया, कितनी देर में किया और आपका बिहेवियर क्या था, आपका फ़ोन कौन सा है, आपका डेटा कैसा था, और इतनी सारी इंसाइट्स हैं। हाँ. अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं, और कलेक्ट सब करेंगे, नहीं कि मैं अकेला कर रहा हूँ, हाँ. मसला ये किसी को पता ही नहीं वो कलेक्ट क्या कर रहे हैं। सो हम डे 1 से ना सिर्फ डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको उसके मुताबिक टैगिंग देना शुरू करते हैं। फिर हम प्रेडिक्टिव बिहेवियर्स के मॉडल को अपने वेरीफाई कर रहे होते हैं कि हमने प्रेडिक्ट किया था ही इज अ SCCA गाय, ये ई में कैसे आ गया, हमने क्या गलती की, राइट। और वो अच्छा, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आपने जो सेगमेंटाइजेशन की है वो हो गई है। सेगमेंटेशन के अलावा इंपॉर्टेंट ये कि जो सेगमेंटेशन है वो करेक्ट कितनी है और फेलियर कितना है। वो जो फेलियर का परसेंटेज है, दैट इज वेयर मशीन लर्निंग हेल्प्स, राइट। आपने वो फेलियर पकड़ना है, सक्सेस तो सक्सेस है, हम वो कॉन्स्टेंटली पकड़े होते हैं, उस पर वापस जा रहे होते हैं। फिर हम अपने कस्टमर्स को क्योंकि कस्टमाइज एक्सपीरियंस देते हैं ऑल टुगेदर, तो बी इट के वो CX पे आ रहे हैं, बी इट के वो मेरे टेक से रिलेटेड पॉइंट दे रहे हैं, बी इट के वो ऐप को 3 बार यूज करें टू अ लेवल कि अगर वो एक ऐप की स्क्रीन पे 3 बार गया है और आगे नहीं गया, I get to know, and I get to know कि वो किस जगह पे हाथ लगा रहा था जहाँ पे कोई मसला आ रहा था। He should not be complaining me, I should know कि ये मसला है, and we get back to him कि अच्छा आपको ये प्रॉब्लम आया था, अब ट्राई करके देखें आ रहे या नहीं हमने। और उसका जो कस्टमर का एक्साइटमेंट लेवल होता है ना कि यार मैंने तो उन्हें बताया भी नहीं, मेरा ये बटन नहीं काम कर रहा था, एंड फोन टू फोन वेरी करता है, हो जाता है, बट दैट इज वेयर यू हैव टू ब्रिंग द डेटा इनटू अ फंक्शनल परफॉर्मेंस वाली वे में, जहाँ पे आप डेटा को एनालाइज नहीं सिर्फ कर रहे, उसको देख रहे हैं, उस पर एक्शन ले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वो वाला स्टेप आता है जहाँ पे आप देखते हैं कि अब इसको क्रॉस सेलिंग कैसे करनी है, अब इसको अप सेलिंग कैसे करनी है, अब इस डेटा को मैं यूटिलाइज कैसे कर सकता हूँ। लेकिन प्राइमरीली अगर डेटा डंप्स आप लेते जा रहे हैं और टेराबाइट्स ऑफ डेटा आपके पास पड़ा है और उस पर DWH नहीं हुआ, उस पर बिग डेटा के कॉन्सेप्ट्स नहीं लगे हुए, सो वी आर फ्रॉम, और अगर आप खुद भी डायसेक्ट करके नहीं देख रहे, और उसका मसला ये कि जितना ज़्यादा आप आगे जाते हैं ना विदाउट डूइंग दैट, तो उतना बड़ा दलदल है। तो आपको ग्राउंड अप, आपको एक बहुत ज़्यादा एजाइल स्पेस चाहिए जिसके अंदर, उसमें दैट्स योर स्ट्रेंथ, राइट। क्या 4 साल बाद you will be in a much better position to be able to build on top of that versus the other folks. और जो ऑर्गेनाइजेशन 4 साल चल जाती है उसके लिए फिर ये 4 साल का प्रोजेक्ट होता है इस डेटा को सीधा करना, और वो कभी नहीं होता, वो कभी नहीं होता, वो मसले आते रहते हैं। एक CEO की एवरेज लाइफ 3 साल होती है ना, तो वो क्यों कोई प्रोजेक्ट खोलेगा जिसमें 4 साल लगेंगे, लेट्स बी ऑनेस्ट, राइट। तो उसकी प्रायोरिटीज हमेशा डिफरेंट रहेंगी, अगर वो खोल भी देगा तो अपनी जिंदगी में उसके एडवांटेज नहीं देखेगा। तो ग्राउंड अप बनाने में मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि बेसिस करेक्ट रखे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेसिस करेक्ट रखी हुई है। अच्छा, I know you do have to run and there's just so much to unpack and I would love to have a round 2 with you as well. Sure. But one thing I really want to understand, I'm going to ask this a very sort of complex open-ended question मेरा छोटा था, अब उसके बाद मैंने कहा 3-4 को क्लब इन टुगेदर कर लूँ। पाकिस्तान में बड़े से सुन रहे जी डिजिटल बैंकिंग, कैशलेस। अच्छा, हमें पता है कि पाकिस्तान में पिछले दिनों मेरी फैसल आफ्ताब साहब आए हुए थे ज़ेन कैपिटल के, एंड ही टॉक्ड अबाउट हाउ पाकिस्तान के, यू नो, वी ऑल टॉक अबाउट पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशंस। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ एक्सप्लेन की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का सॉल्यूशन है सिर्फ और सिर्फ डिजिटल पैसा। जिस दिन आपका पैसा डिजिटाइज हो जाएगा, आपकी करप्शन भी नहीं हो सकती, आपके 10 और मसले नहीं हो सकते, आपकी इनएफिशिएंसीज जो हैं वो ऑप्टिमाइज भी होना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज यू नो यू ब्रिंग द एंटायर स्ट्रक्चर टू वो, यू नाउ हैव बेटर डेटा, बेटर बुक्ड इकॉनमी। हाँ, वो एग्जैक्टली। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है ज़ाहिर है प्लेयर्स लाइक JS बैंक और ज़िंदगी टू बी एबल टू प्ले देयर रोल, राइट। बट फॉर द लास्ट 15 years वी बीन हियरिंग, श्योर उस पर एट सम पॉइंट कहा जाता था जी रेगुलेटर बड़ा मुश्किल है। अब तो पिछले 4-5 साल में तो रेगुलेटर ने कहा भाई तू चाहता क्या है बताओ, एंड वो भी सारा होता रहा। फिर वो हुआ कि यार वो एक्चुअली ना हमारा पेमेंट गेटवे बड़ा लेगेसी है, रास्त को भी 2 साल हो गए। फिर कहा गया कि यार वो FATF था ना, तो FATF ने भी कहा ओके बॉयज यू डू यू। Somehow that revolution isn't coming in. Somehow you've got I talk to someone and they'll be like, sir ये 5 apps तो मैं कर चुका हूँ, ये भी मैंने कर ली, 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 लेकिन वो सर कैश देते हैं सर, ये खप है, right? And so it's one thing to get app downloads, it's another thing to get app sign-ups, it's another thing to say कि once a month वो आ भी जाता है यूफोन का बिल पे करने के लिए, ठीक है। बट वॉट रियली मैटर्स इज के एक्टिव यूजर, जिसके यूजर जो एक्सपीरियंस है वो एंड टू एंड डिजिटल हो, वो कैश पे डिगली ना करे, उसको कैश निकालने का अजाब लगना शुरू हो जाए। बाहर आप जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना, तो जब कोई कैश की बात करता है तो आप कहते हो, सर पकड़ लेते हो कि भाई तू क्या बात कर रहे हैं आज के 21वीं सदी के अंदर। एंड सो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर व्हेन आई टॉक अबाउट, मेरा पर्सनल उसमें जाती, आई वांट योर ओपिनियन ऑन ऑल ऑफ दिस कि क्या वजूहात हैं, लेकिन एक मेजर वजह उसमें ये रही है कि हमने बस कहा जी पहले आप कैश इन कैश आउट कर रहे थे, अब आप डिजिटली कैश को आगे पीछे कर लो। उसके वो यूज़ केसेस नहीं आए, मोबाइल टॉपअप से हम आगे नहीं गए, 4 यूटिलिटी कंपनी से आगे नहीं गए। अगेन जेनजी और मिलेनियल जो है वो अभी यूटिलिटीज़ नहीं पे कर रहा, उसके बू पे कर रहे हैं। वो जो यूज़ केसेस चाहता है वो यूज़ केसेस एग्जिस्ट नहीं करते।
पूरी दुनिया में fintech apps have sort of merged into the space of super apps as well, not to say complete super apps, but also certain use cases, a lot of other use cases integrated within the product. And then third and most important, कि investments जो कि Gen Z और millennial बहुत ज़्यादा seriously देख रहा है, वो सुनता है, वो उसके बारे में करता है. One of the most watched episodes on my show as well have been investments. वो एक बहुत बड़ी स्पेस है जिसको डिजिटाइज आप कर लें तो वो इट्स द सेम प्रॉब्लम एज द बैंकिंग प्रॉब्लम, राइट? पेपर वर्क, इंटिमिडेटिंग स्पेस वगैरह वगैरह वगैरह. स्टॉक्स हो गई, 10 चीज़ें और हो गई. Robinhood इज अ ह्यूज थिंग इन द वर्ल्ड. व्हाई इजंट दैट समथिंग लाइक दैट? Binance हो गया, ये सारा हो गया. व्हाई कांट दैट बी इम्प्लीमेंटेड विद इन द स्पेस? And then lastly एक और चीज़ थी बट वो दिमाग से निकल गई, तो let's just start with this. Wonderful, very small question. I will try to give a small answer to that. So देखिए, कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो societal problems होती हैं, society at large की problem होती हैं. और societies जो change होती है ना वो एक civilization को ना तब्दील होने के इक्विवेलेंट होता है. सो फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि किसी भी हम फॉरेन कंट्री को देखें, चाहे वो अमेरिका हो या कोई भी जो अच्छा डेवलप कंट्री है, तो क्या वो हमेशा से ऐसे थे? नहीं, बहुत सारे मसले थे, ठीक है, प्रॉब्लम्स में से गुजरे. बट वे दे आर टुडे, हाउ दे एक्चुअली टर्न इनटू दैट, दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या ओवरनाइट रेवोल्यूशन आई है? दुनिया में कभी नहीं आई. मैं एटलीस्ट टू मी कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है जहां पे ओवरनाइट सोसाइटल नॉर्म्स चेंज हो गए हों और लोगों ने बिहेव डिफरेंटली करना शुरू कर दिया. ऐसा नहीं होता. इट टेक्स इट्स टाइम, राइट? अच्छा, अब टाइम के दो तरीके होते हैं. एक ये होता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इतनी सख्त हो कि आपका बिहेवियर चेंज हो जाए और वो इतना 360 डिग्री कवर दे रहा हो कि आप कहीं बच ही ना सकें, राइट? इन स्मॉलर कंट्रीज इट इज़ पॉसिबल कि आप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ कर दें और 360 डिग्री कवर कर दें, तो कुछ सालों में, डिकेड या 2 डिकेड्स में लोग बदल जाते हैं. जैसे दुबई इज द बेस्ट एग्जाम्पल, राइट? सिंगापुर इज द बेस्ट एग्जाम्पल. आप किसी को भी ले लें. अब आप बात करें पाकिस्तान जैसे मुल्क की जो कि 240 मिलियन, 220 मिलियन, आई डोंट नो, 250 पे पहुंच गया. वो खुद ही ऊपर नीचे होता रहता है, हमें भी नहीं पता होता, ये भी नहीं पता कितने हैं. थिंक ऑफ अ होम जिसको ये भी नहीं पता कि उसने कितने खाने वालों को खाना खिलाना है. दैट्स वेयर वी आर. 240-50 मिलियन पॉपुलेशन के लोगों में आप ओवरनाइट कुछ नहीं चेंज कर सकते. अच्छा, नाउ इट इज अ सोसाइटल प्रॉब्लम कि हम एक कैश बेस्ड सोसाइटी है और वो हमारे में इतना इंट्रेंच्ड है टू अ लेवल के जिस एरिया में हम बैठे हैं पंजाब में शादी नहीं होती कैश के बगैर. आप किसी को गिफ्ट देना पंजाब में तो वो बुरा समझा जाता है क्योंकि वो रजिस्टर पे एक बंदा बैठा लिख रहा होता है तुमने कितने पैसे दिए, ठीक है, एंड यू हैव टू गिव कैश. अगर गाना हो रहा है तो आप कैश उड़ाते हैं, ठीक है. इट्स अ कल्चरल थिंग. सो आपकी सोसाइटी में जितनी बुरी तरह कैश इंटीग्रेटेड है, उसकी एक एग्जांपल ये भी है कि ईद पे मैंने लोगों को कहा कि मैं डिजिटल बैंकर हूं, अल्लाह का वास्ता है मेरे से कैश मांगना बंद कर दो. मैं कैश नहीं रखता. वो मजा ही नहीं आता ना, वो मजा ही नहीं आता ईदी का कि यार इसने मुझे क्या मोबाइल ऐप पे भेजे. और क्रैश में भी फ्रेश नोट चाहिए हमें, चाहे हमने उड़ाने के लिए चाहिए चाहे ईदी के लिए चाहिए. सो इट्स अ मेंटल बैरियर एट फर्स्ट. बाकी सारी प्रॉब्लम तो सेकेंडरी है, ठीक है, बट हमें बड़ा एक उसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. ये सारा मेंटल बैरियर हम क्योंकि 60% बिलो 30 हैं, बिलो 30 इज दी अपॉर्चुनिटी जो है कि वो माइंड अपना चेंज कर सकते हैं. अगर अब वो वाले आपके वाली बात आती है, अगर उनके पास वो आइडियल सिनेरियोज हैं जहाँ पे वो चेंज कर सकते हैं, यूज केसेस हैं, ठीक है. सो पहले तो आप ये छोड़ दें कि आपने 100% को चेंज करना है. 100% को तो आप परे कर दें, वो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है. अब आपने 60% को जो चेंज करना है, पहले उनको समझ तो लें उनको क्या चाहिए. अगर आप एक बंदे को कहते हैं यार ये मेरी एक ऐप है, ये डाउनलोड करो, अब जाओ ना दुकान पे जाके इसमें पैसे डलवाओ और बाद में खर्च करो. क्यों? आपने और मैंने बैंक अकाउंट क्यों खुलवाया था? मैंने क्यों खुलवाया था? किसी से पूछना जिसने बैंक अकाउंट खुलवाया होगा ऐसे 20 साल पहले, 10 साल पहले. क्यों? क्योंकि मेरी सैलरी उस अकाउंट में आनी थी, मेरे पास पैसे ही नहीं आने थे. पैसे क्योंकि आते ही मेरी सैलरी उस अकाउंट में है तो मैंने अकाउंट खुलवा लिया. जब मैंने वो अकाउंट खुलवा लिया तो इनिशियल क्या था? एक कार्ड, मैं पैसे सारे निकाल लेता था, यूज़ करता था. आज मेरे अलावा एक वर्कर का भी बिहेवियर चेंज है जिसकी पेरोल उसके अकाउंट में आती है. क्यों? क्योंकि जब पे आती थी उसने इवेंचुअली सीख ही लिया कि एक ऐप भी है, खुद सीख लिया, बच्चे ने सिखा दिया. और एक बड़े मजे की ट्रांजिशन है, टेक्नोलॉजी नीचे से ऊपर जा रही है. हमारे घर में मेरे फादर को मेरी बेटी ने सिखाया व्हाट्सएप कैसे यूज़ करते हैं, फेसबुक कैसे यूज़ करते हैं, राइट. तो वो ऐप यूज़ करना भी सिखा देते हैं, वो बैंकिंग करना भी सिखा देते हैं, वो सब कुछ हो जाता है. ज़रूरी है कि वो पैसे उसके अकाउंट में आ रहे हैं और वो मजबूरी है. दैट्स वन. सो मेरा ख्याल है जब भी हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, एक बड़ा आंसर जो हमने करना है ना, वो ये माइनस करना है जिस पे ब्रांचलेस बना था कि पैसे डालो.
डालने वाला कॉन्सेप्ट नहीं, उसके पैसे आने उधर चाहिए, ठीक है। एंड दैट्स वन ऑफ द प्रायोरिटी सेगमेंट जिसको जिंदगी टारगेट करता है कि सोर्स आपकी जो है ना इनकम की, वो कैश में नहीं गिरनी चाहिए, वो डिजिटल गिरनी चाहिए। उसके बाद आपका स्पेंडिंग बिहेवियर खुद ही चेंज हो जाएगा। हो सकता है आप पहले महीने सारा कुछ निकाल लें, ठीक है, फिर आप कहेंगे कि यार मैं क्या जा रहा हूँ एटीएम, मुझे वो अगले को भी बोलेंगे यार भाई तू 12 बजे आप पेट्रोल डलवाने जाएंगे, आप एटीएम नहीं ढूंढेंगे, आप सीधा कार्ड दे देंगे क्योंकि जेब में पैसे नहीं है, ठीक है। वो एक ट्रांजेक्शन आपको ट्रस्ट देगी कि ये तो चलता है, राइट। उसके बाद आप दूसरी करेंगे, तीसरी करेंगे, फिर आप ऐप भी डाल लेंगे, फिर आप देखेंगे अच्छा मैं बिल क्यों इस तरह पे करता हूँ। अब यहाँ पे आके ना 40% तो आप कवर कर जाएंगे उसके एक्सपेंसेस को, 60 फिर भी नहीं कवर होंगे क्योंकि वो यूज केसेस नहीं है। तो फिर आपने जिस मार्केट को हम टारगेट कर रहे हैं जेनजी और मिलेनियल, उनका 60% यूज केस हमेशा इन्वेस्टमेंट होगा, जो आपने पॉइंट रेस किया था, राइट। हम में और उनमें फ़र्क क्या, जेनजी और मिलेनियल्स हमेशा पैसा डबल करने का सोचते हैं। हमें जब पॉकेट में मनी मिलती थी ना, हमारा पहला पर्पस होता था खत्म कैसे करें, इसको स्पेंड करना है, ठीक है, किधर मैं क्या क्या लूंगा, बट दैट्स देयर माइंडसेट, दे वांट टू डबल ट्रिपल इंक्रीज देयर मनी। हमने क्या किया एज अ फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री, हमारे मुल्क में कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है इन्वेस्टमेंट की। You have the lowest savings and we have the lowest investments across the region. उसकी वजह है ना, आप देखिए ना, आपके इन्वेस्टमेंट के बड़े पोर्टफोलियोज क्या हैं, आपके इन्वेस्टमेंट के बड़े पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स होता है, मार्केट है ना। यही बच्चे इंटरनेशनल फॉरेक्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाइनेंस में भी। 2 लाख पाकिस्तानी जो है वो स्टॉक मार्केट में, 2 बिलियन पाकिस्तानी जो है वो क्रिप्टो में, तो इट मेक्स नो सेंस टू मी। अब आपको मजे का तो क्यों है, उसकी वजह है क्रिप्टो आपको ऐप डाउनलोड कराता है और आपको अपना सब्सक्राइबर बना लेता है और कहता है एक दो चीजें हैं, एक कन्वीनियंस टू गेट ऑन बोर्डेड, 2 एंट्री बैरियर कोई नहीं है, $1 से कर लो, सेंट से कर लो, आ जाओ, ठीक है। हमने एग्जैक्टली यही किया। हमने 18 महीने पहले जब लॉन्च किया, हमें पता था जेनजी मिलेनियल क्या चाहते हैं। हमने 2 एरियाज को एक्सट्रीमली कन्वीनियंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट में 2 बड़े एंगल है, एंड कर्टसी जेएस ग्रुप में, क्योंकि दोनों वर्टिकल हमारे पास भी थे, बैंक की सब्सिडीज थी, एक जेएस ग्लोबल जो कि स्टॉक मार्केट को देखता है, स्टॉक मार्केट का बिगेस्ट प्लेयर है, और दूसरा जेएस इन्वेस्टमेंट जो कि म्यूचुअल फंड को देखता है। हमने क्या किया, हमने आपकी ऐप के अंदर जेएस ग्लोबल के थ्रू स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करना आसान बना दिया। राइट। अब आप जो 2 लाख का नंबर बता रहे हैं, ये है पिछले 75 साल का। राइट। हमने इसका रफली परसेंटेज बता रहा हूँ, इसका 30-35% कस्टमर ऐड किया इनका इन लेस देन 6 मंथ्स, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, आप ऐप से ही डिजिटली रजिस्टर करें। पहले कैसे होता था, पहले होता था कि स्टॉक में सिर्फ वो बंदा जाता था जिसका 30-40 लाख होता था, क्योंकि एक बंदा आएगा, फिर वो फॉर्म लेके आता था, 15 दिन में अकाउंट खुलता था, फिर आपने पैसे डालने हैं, उसके 10 दिन लगेंगे। कॉस्ट ऑफ ऑनबोर्डिंग इतनी ज्यादा है कि यार मैं 5,000 रुपए के लिए क्यों करूँ, 50,000 रुपए के लिए क्यों करूँ, कर ही नहीं सकते। और फिर आप समझते, फिर मेंटल बैरियर भी था ना कि यार ये मेरे लिए है ही नहीं, ये तो मीरों के लिए, सिर्फ 2 लाख लोग थे। अच्छा, फिर आपने पैसे वापस निकालने, वो भी एक हिसाब है, 15 दिन बाद आ रहे हैं, स्टॉक गिर गया और चढ़ गया। हमने कहा भाईजान दुनिया में क्या हो रहा है वो देखते हैं, और वो करते हैं। हमने उठा के सारा डिजिटाइज कर दिया। आप अकाउंट खोलें डिजिटली, आप पैसे लेके जाएं जिंदगी से उसी वक्त लाइव बेसिस पे, 10 रुपए का शेयर है खरीद लें, 2 रुपए का खरीद लें, मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ट्राई करें, शेयर बेचें, 2.5 रुपए का था, बिक गया, 2.5 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपका प्रॉफिट। और आपको लाइव नजर आ रहा है कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है। फिर हम वीडियोस भेज रहे होते हैं, पॉडकास्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा ये कर लो, ये कर लो। जेनजी एंड मिलेनियल लव्स इट, राइट। उन्होंने 30% कस्टमर बेस ऐड किया है। जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं स्टॉक मार्केट की, वो परेशान है, ये हो क्या रहा है, ठीक है। और हमें बहुत सारे चैलेंजेस भी है, क्योंकि दे वर नेवर प्रिपेयर्ड। वो तो दिन में 2 अकाउंट खोलते थे, हमने दिन में 1000 अकाउंट खोलने शुरू कर दिया, मुसीबत बन गई। सिमिलरली म्यूचुअल फंड पे, म्यूचुअल फंड इज द बिगेस्ट फंक्शन ऑफ सेविंग विद दिस काइंड ऑफ क्रेजी इंटरेस्ट रेट। हु विल नॉट वांट। अब मसला क्या है, म्यूचुअल फंड में जाना है, एक बंदे को बुलाएं, अकाउंट खुलवाएं, 3 लाख रुपया दें कम से कम। हमने म्यूचुअल फंड का टिकट साइज किया 103 रुपए का, अकाउंट खुलता है लेस देन 30 सेकंड में। आप ऐप में से जाएं, रोज सुबह 1 यूनिट खरीद लें 103 रुपए का। अब मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे पास काफी सारे पैसे बन गए हैं। ना सिर्फ वो मेरी सेविंग होती जा रही है, वो रेगुलरली मेरी सेविंग में ऐड भी होती जा रही है, मेरी कंपाउंड कर रही है। उस पे आई कांट टेल यू द अमाउंट ऑफ क्रेजी वो जो फीडबैक हमें आता है, और जो उसका हमें इतना मजे का एंगेजमेंट मिली हमें कस्टमर से। तो आप अपॉर्चुनिटी दे दें इनको, दे विल फिगर इट आउट एंड दे विल गो। लास्टली, ये जो जेनजी एंड मिलेनियल है ना, ये दे आर एथिकली वे बेटर देन दी, मैं ये नहीं कह रहा प्रीवियस जनरेशंस। उसकी वजह है क्योंकि दे आर मोर नोन टू द वर्ल्ड, दे नो हाउ एक्सपोजर है ना, वो एक्सपोजर है। जो चीजें उस टाइम के ऊपर आपको करप्शन नहीं लगती थी, वो आज करप्शन लगती हैं, क्योंकि आपको नजर आता है। इनके लिए ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं, करप्शन बुरी चीज, ठीक है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप इनसे कहीं डिजिटाइज करो। सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट रिलेटेड तमाम पेमेंट्स हैज टू गेट डिजिटाइज्ड, एंड ऑन वन डे इट हैज टू स्टॉप ऑन कैश। अगर आप कैश बेस्ड इकोनॉमी को खत्म करना चाहते हैं ना, तो ये 3 स्टेप बहुत जरूरी है। जेनजी मिलेनियल को फोकस करना, आपने टारगेट करके उनकी सोर्स ऑफ इनकम उनके अकाउंट्स में लाना, जो भी है, ठीक है।
जिस तरह भी आ रही है, फ्रीलांसर है, पॉकेट मनी है, कोई भी है, सोर्स ऑफ इनकम उनके अकाउंट में लाना। दूसरा, मेक श्योर करना कि उनके पास इन्वेस्टमेंट और अदर यूज केसेस हैं। और तीसरा, गवर्नमेंट की पेमेंट्स। और हमने ये तीनों काम करके देखे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल द लास्ट वन, गवर्नमेंट पेमेंट्स। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस आज से 4-5 साल पहले हमने डिजिटाइज की। हमने कहा यार ये कैश में पे ना हो, हमने उनको सारा सोल्यूशन बना के दिया। ट्रैफिक पुलिस को डिजिटाइज किया, बीइंग अ टेक कंपनी। हमने कहा यार आप टेंशन ना लें, आपको हम ऐप भी देते हैं, डिवाइसेस, आप चलान जनरेट करेंगे, डिजिटली होगा, पे डिजिटली होगा। वी आर सेविंग मिलियंस ऑफ रुपी एवरी मंथ फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विच इज़ देयर रेवेन्यू। ठीक है, कहीं पे कोई लीकेज नहीं है, कस्टमर इज मोर देन हैप्पी। वहीं पे पहले वो एक जलालत होती थी, खड़े होना पड़ता था, लंबी लाइनें, उधर बैंक में पे करो, उधर से जाके लाइसेंस लो, भाई अभी लो मेरे से पैसे, मुझे लाइसेंस दो, मैं आगे उधर ही पे करते हैं। और उसी वक्त आपका मसला भी हल हो जाता है। मजे की बात यह है क्योंकि पेमेंट उधर हो रही होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी कन्वीनियंटली मिल रहे होते हैं, तो इसके पीछे एक स्टिग्मा चलता था, और यार एप्रीहेंशन थी, पता है लोग ज्यादा वायलेशन करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल नहीं, 1% भी इंक्रीज नहीं है वायलेशन, बल्कि उल्टा गिरी है। क्यों? क्योंकि फंड्स बेहतर मोबिलाइज हुए पुलिस के एज अ डिपार्टमेंट, पुलिस ने और इफेक्टिवली काम किया, तो जो कंट्रोल था वो इतना बेहतर हो गया कि एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली ट्रांसपेरेंसी भी आ गई, राइट? सो द कस्टमर नाउ हैज कि भाई मैंने पे किया है, तो वो जाके वो जो दरमियान में ब्राइबरी और वो चीजें उनको भी नजर आ रहा होता है। सो आई थिंक इट इज अ कॉम्बो ऑफ 3-4 थिंग्स जिसको अगर हम इफेक्टिवली नेशनल लेवल स्ट्रेटजी बना के, और इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंपटीशन, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इसको ना थोड़ा सा बड़े दिल से सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। अब यार पाई साइज को अगर कंपटीशन में चले ना, पाई साइज बढ़ाएं, देखें सब खेल लेंगे, ठीक है? अभी भी बहुत बड़ा है यार, दूसरे का पाई साइज जो है वो उसका काटने का छोड़े। अभी तो आधी से ज्यादा पॉपुलेशन तो आई नहीं है भाई। अभी तो गेम शुरू ही नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ नेट प्रैक्टिस हो रही है। एक्जैक्टली, और अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि अगर नेशनल लेवल स्ट्रेटजी बन जाए एंड एवरीवन जस्ट play fair, 100%. Everyone will be 100%. Numan, I'm going to ask you one last question. Please. Before my last question, within the same context, credit cards. You have the data of the customers. You've got these sort of folks like Abhi and buy now pay later platforms who are now trying to sort of bring in the जो ये originally credit card start हुए थे with Diners Club and so on in the US. Effectively, what the idea was कि यार हमारे पास कस्टमर है, हमें पता है वो कस्टमर अच्छा है, उसको मैं पहले पैसे दे दूँ और उसके बाद मैं एक मार्जिन कॉल ले लूँ, राइट? वो चीज़ अब आप डिजिटल इकोनॉमी के अंदर यू कैन रियली रेडिकली इंक्रीज दैट। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोगों को अंधाधुन क्रेडिट कार्ड्स बांटें और 10-10 लाख की लिमिट्स दे दें, बट जिसकी जो औकात है उस पर आप एक सॉर्ट ऑफ टेस्टर तो देना शुरू करें ना, कंज्यूमर बिहेवियर तो बिल्ड करना शुरू करें। चाहे वो आपकी अर्ली कैश आउट है, अभी इज डूइंग कैश आउट, आई एम नॉट नेसेसरली सेइंग डू दैट, but credit is a major function of digital digital banking and credit को टच ही नहीं करते। I don't know why there is this huge problem कि जी डेबिट छापते रहो। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है पीछे बैंक क्या पीछे क्या है, माइक्रो फाइनेंस बैंक के अपने मैंडेट्स हैं, वो उस मैंडेट को क्रॉस नहीं कर सकते, करना चाहते हैं पैसा सिर्फ। देखिए डिजिटल बैंक ने भी कहीं पैसा कमाना है ना, एट द एंड ऑफ द डे हर बंदा पैसा कमाना चाहता है। डिजिटल बैंकिंग में पैसा कहाँ पे आता है? आता ही लेंडिंग में। सो बाकी सब कुछ तो फ्री है, करना चाहते हैं, इंटेंट इज देयर, कर भी सकते हैं, बुक अलाउ नहीं करती, रेगुलेशंस अलाउ नहीं करती। दैट्स वन प्रॉब्लम, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस है मेजर प्लेयर के पीछे, और बाकियों की तो मैंडेट ही नहीं है। हमें एडवांटेज क्या है? हम एक कमर्शियल बैंक है, ठीक है, तो हम तो कमर्शियल बैंक की बुक पे चलते हैं। इस पे लेकिन पॉज, एक माइक्रो फाइनेंस बैंक था, पीछे उनके पास बैंकिंग लाइसेंस भी था, उन्होंने किया भी, आगे फ्रॉड्स हुए, उनके 4 साल लॉसेस भी रहे, बहुत ज़्यादा मैसिव एक्विजिशन का पैसा भी आया, सारा कुछ हुआ, मार खाई उन्होंने। मैं इसीलिए व्हाट आई एम सेइंग इज इफ एंड व्हेन यू डू इट, जो मेरे डेटा वाला सवाल था ना, मैं इसी पे आ रहा था। देखिए अंधाधुन तो ना बांटो, अंधाधुन बांट नहीं सकते। दो मसले हैं जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो एग्जाम्पल इज अ कॉम्बो ऑफ 2 थिंग्स। इट इज नॉट ओनली द डिजिटल लैंडिंग, इट वाज अ कॉम्बो ऑफ डिजिटल प्लस ट्रेडिशनल लैंडिंग वन। और मुझे नहीं पता ऑब्वियसली फैक्ट्स तो नहीं पता जो भी होंगे, बट इट वाज नॉट ओनली डिजिटल। का मकसद ये है कि आपने डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने हैं, और एल्गो आपने इतना स्मार्ट बनाना है कि आपने कस्टमर की जर्नी बनानी है। तो आप छोटा शुरू करेंगे, ट्राई करेंगे, बैड डेट्स होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, उतना आइडियल नहीं हो सकता जितना आप कार लोन दे के या सिक्योर्ड लोन दे के आइडियलाइज कर रहे होते हैं, बट बैंकों के बाकी लोन भी इतने आइडियल नहीं होते। सो डेलिंक्वेंसी रेशियोज होती हैं बैंकों में, जब भी आप अनसिक्योर्ड खेलते हैं, क्रेडिट कार्ड्स में डेलिंक्वेंसी हायर देन मॉर्गेज और कार होती है ना, क्योंकि जब भी आप अनसिक्योर्ड लेकिन क्या आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप अपने डेटा को ठीक तरीके से यूज करके वो डिसीजन ले रहे हैं? अगर ले रहे हैं तो फिर डेलिंक्वेंसी अचीव, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन एक्चुअल मॉडल, राइट? इट्स लाइक इंश्योरेंस, राइट? सो आपने जाके, और रिसेंटली आई वाज लुकिंग एट के जनरेटिव एआई इज कमिंग इनटू इंश्योरेंस एज वेल, सो दे आर एबल टू ऑप्टिमाइज द होल एक्चुअल मॉडल मच बेटर एज वेल, बट एट द एंड ऑफ द डे आपने देखना कि यार द टोटल अमाउंट ऑफ डेलिंक्वेंसीज वर्सेस
versus the total amount of cash in. Exactly. And the total amount of money that you're making has to be higher, and you're good to go, right? Someone has to start it. We already did. So जो मॉडल है ना एडवांस वाला, वो तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं. It is very successful. We have अल्हम्दुलिल्लाह no observation altogether. कोई चक्कर नहीं है. बट वो हमारा ज़रा ज़्यादा सिक्योर इसलिए क्योंकि वो होता ही पेरोल कस्टमर के लिए है, तो वहाँ तो इशू भी नहीं है. In less than 2-3 months, you will see we are going massively on lending side. But again, we are taking our time to build our database. अच्छा, हमको बताओ सब तैयार है. हाँ. हमारे जो फैक्टर्स है ना, जिसको हमने रखा हुआ है कि यार ये की फैक्टर्स एंड टेकिंग अ डिसीजन, राइट, उनमें एक सर्टेन लेवल ऑफ एज ऑफ कस्टमर इज द ओनली थिंग दैट वी आर वेटिंग. राइट, ताकि एक मेजर चंक उस एज को क्रॉस करे उसकी, क्योंकि हमारा जो एल्गो है वो काम इस तरह करता है कि उसके एज के बाद हमें कुछ और जवाब मिलते हैं. द डे वी गेट, और इट्स लाइक 60 days फ्रॉम टुडे, तो हम 65 या 70 days पे विल इंशाल्लाह बी लाइव, एंड इट विल बी very convenient for customer, but very safe for bank and public as well. And but is it lending only, or can we begin to see credit cards being rolled out to customers? You will be seeing a lot of stuff, not only credit cards. Since we are backed by a commercial banking license, we will do everything inshallah in days to come which a bank does, but the only difference will be digital. Makes sense. Numan bhai, I'm going to ask you one last question. After a very long time, I found someone who's been, क्योंकि आजकल थोड़ा environment ऐसा था, who's helped me gain a certain emotion of optimism back into my life. And so I'm going to ask you this question with the backdrop of that optimism. How do you see Pakistan 27 years from now, of 2050? Knowing what you know now, seeing what you've seen, and the evolution particularly, आपने टेलीकॉम में भी देखी, आप फिनटेक में भी देख रहे हैं, और वो आपने बड़ी एक अच्छी मिसाल दी कि चेंज मोर ऑफन देन नॉट डजंट कम ओवरनाइट, रादर जितना क्विकली आता है उसके चांसेस ऑफ फॉल भी उतने ही होते हैं. सो सस्टेनेबल चेंज एक्चुअली टेक्स अ लॉन्ग वाइल. अ लॉट ऑफ पीपल अनफॉर्चुनेटली आर नॉट एबल टू सी दैट बिकॉज वो ज़्यादा डे टू डे पे रह रहे हैं. बट फॉर समवन, और जाहिर है आप एक बड़ा होलिस्टिक लेवल पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, आपके वो एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं. मैं गारंटी दे सकता हूँ 15 साल पहले का नुमान अगर आज के नुमान से मिलता तो कहता भाई कौन है. And so having had that experience, how can you potentially extrapolate what's going on and how things will evolve, and give me an image of Pakistan of 2050? So honestly speaking, I'm very optimistic. Rather, I'm sure Pakistan is going to grow. Pakistan is going to be inshallah reach there where we really wanted to reach from day one. फर्क सिर्फ एक होगा, वो फर्क ये होगा कि आइडेंटिफिकेशन कौन वहाँ, देखिए मैंने अगर यहाँ से लाहौर तक जाना है ना, तो मुझे पता है वहाँ रास्ता कितना है. अब या मैंने खुद ड्राइव करके जाना है, मैंने किसी पे रिलाई करना है, क्या मुझे ये पता है कि मैंने किस गाड़ी में जाना है, किस बंदे के साथ जाना है? अगर ये आइडेंटिफाई ठीक कर लूँगा तो पहुँच जाऊँगा. लकीली फॉर पाकिस्तान, इस आइडेंटिफिकेशन का डिसीजन भी पाकिस्तान के किसी बंदे के पास नहीं है, वो सेल्फ जनरेटेड है. वो क्या है, पीछे किसी कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा, और अक्सर मैं ये रिपीट भी करता होता हूँ, तो काफ़ी नाराज़गी भी हुई क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे थे जिनको मेरी बात बुरी लगी. मैंने कहा पाकिस्तान ने ना 70 सालों में 75 सालों में बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत चीज़ें क्लेम की हैं. हमने हमेशा कहा मुश्किल वक्त में निकल जाएंगे, नहीं निकले, ठीक है, हर दफ़ा कह देते हैं. बट हमने किन बेसिस पे कहा? हमने कहा हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, हम एग्रीकल्चर में बूम मारेंगे, हम सब निकल जाएंगे. टुडे लेट्स बी रियलिस्टिक, वी आर नॉट एन एग्रीकल्चर कंट्री. जो कंट्री गंदम और चीनी बाहर से मंगवा रही है वो एग्रीकल्चर कंट्री नहीं है. आप कहते रहे, मैं नहीं मानता. दूसरा हमने कहा जी हम मिनी मैनचेस्टर हैं, फॉरगेट इट. सारे मिनी मैनचेस्टर वाले बांग्लादेश में बैठे हैं, ठीक है. फैक्ट्री आपका चलती कोई नहीं है. झूठ बोलना, खुद से बोलना है. बोलते रहे 20 अरब रुपए की आपकी टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, आप कर क्या रहे हैं? जिसमें से 8-10 अरब जो है ना वो रॉ मटेरियल में जाता है, वो आपको चूना लगता है. मतलब देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, तो कोई चक्कर ही नहीं है मिनी मैनचेस्टर वाला. तीसरा चीज़ ये थी कि स्टेट तगड़ी है, और स्टेट जो है वो इंश्योर करती है. हर स्टेट का काम है ना, क्या काम है कि आपको आइडियल अपॉर्चुनिटी देना स्टेट का काम है. आपने MBA कर लिया, मुझे नौकरी दे स्टेट, ठीक है, नौकरी नहीं दे सकती तो अपॉर्चुनिटी दे. हम स्टेट हमारी इस वक्त ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम्स में, और उनको हैंडल करना है, विच इज़ फेयर. दे हैव टू गिव प्रायोरिटी कि पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चन में ना आए. पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान के और बहुत सारे मिसाइल हैं, जियो पॉलिटिकल मिसाइल हैं, उधर ध्यान रखना है. अल्लाह ताला ने हमें पता कैसी आइडियल सिचुएशन में डाला है. जो काम स्टेट का था वो इंसान खुद कर रहे हैं, वो लोग खुद कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स. हमारा जो फ्यूचर है ना वो टेक में है, और वो हमें फर्क नहीं पड़ता कि कोई माने या ना माने. आप मुझे टैक्स कर लेंगे, आप मेरे पे गलत डिसीजन लेके मेरा अकाउंट नहीं खुलने देंगे, मेरे रास्ते बंद नहीं होते. आप मुझे ये बताएं, प्रॉब्लम अपनी जगह, बट क्या फ्रीलांसर ग्रो होने से रुका है पाकिस्तान में? मुझे ये पता है कि मेरा मैट्रिक फेल जेनजी भी जो है ना,
वो फ्रीलांसिंग कर लेता है, चाहे वो प्रेजी का एक सॉफ्टवेयर खरीद के उसको इस्तेमाल करना सीख ले, और उसके लिए जो कि उसके पास खाली ऑप्शन यही था कि वो किसी दुकान पे जाके 10-12 हज़ार की नौकरी करता, वो भी $1000-2000 कमा लेता है, ठीक है। तो मेरे लिए इट्स नॉट अ क्वेश्चन। एंड देन बड़ी टेक कंपनीज, बहुत बहुत बड़ी टेक कंपनीज, बहुत सारे स्टार्टअप, वी आर गोइंग टू ग्रो, वी आर गोइंग टू ब्रिंग, इंशाल्लाह जिंदगी विल प्ले इट्स रोल एज वेल, वी आर गोइंग टू ब्रिंग एवरीथिंग, एवरी पेनी बैक टू पाकिस्तान। वी विल जस्ट stand up on the expectations of the world as per the standards that they require, which comes जैसे आप कह रहे थे अनुमान 15 साल का पहले और 15 साल बाद फर्क क्या है, एक्सपोजर का फर्क है ना, तो वो एक्सपोजर के प्रोसेस से गुजर गए हैं। 2050 में पाकिस्तान विल बी अ टेक जाइंट इंशाल्लाह, और वो टेक जाइंट ना स्टेट बनाएगी ना कोई रेगुलेटरी बनाएगी, ये खुद ही बना लेंगे, और जो काम खुद होता है ना वो नेचुरल इवोल्यूशन होती है, लॉन्ग टर्म होती है, कभी वापस नहीं होती। Makes a lot of sense, Numan. Thank you so much for both coming in, sharing that, all that insight, and also again sort of spreading that optimism which is much needed in this time. Thank you so much for coming in. Thank you very much. Thank you very much. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। नीचे आके कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, have you used the Zindagi app? If you have, how has your experience been so far? Are there things that you like or do not like? Let me know in the comment section below. I would love to hear that feedback, and I'm sure Numan's team would love to hear that as well. But इसी के साथ साथ YouTube वाले लाइक कमेंट दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक कन्वर्सेशन पहुंचेगी, और प्लेटफॉर्म वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाली एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। यहाँ पर कहीं पर इजी पैसा जायज़ का सादा प्यार होगा। If you'd like to support the channel, we accept anything from ₹1 to as much as you'd like. It's the thought that counts. और नीचे एक और लिंक है for Stripe as well, for overseas Pakistanis if they'd like to support the channel, so you can check that out as well. But anyways, this was Syed Muzammil Hassan Zaidi. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.